let us start with today's session. So, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, first of all, we will see what are the different points you need to remember for the topic centroid. So, starting with it, the first thing you have to remember is how to solve the problems on centroid. Whatever may be the question कैसे भी दिखने वाला हो, the steps will remain same. And that steps are, first of all, you have to check whether the figure is symmetric or not. Okay. And if you can see if figure is symmetric about x-axis, we will directly write y bar equal to 0. That means we will not calculate for y. But the condition is what? Where should we take the reference point? If the figure is symmetric, Leftmost bottom point. no. Leftmost point. No, sir. Intersection of axis. Correct. If the figure is symmetric about x-axis, for example, let us say like this. Okay, if I make the figure like this, yeah. So this is the figure which is symmetric about x-axis. So if I draw the x-axis here, we have to take the reference point on the axis, but on the left side. So this will be your reference point, and then only I can write y bar is 0. Then only I can write y bar is 0. Else we cannot write. We get wrong. Similarly, in second thing, if the figure is symmetric about y-axis, if the figure is symmetric about y-axis, so let us say y-axis के symmetric क्या बना दूँ? Okay, T. Okay, let's say this. So now you can see that figure is symmetric about y-axis. So if this is asymmetric about y-axis, select the reference point on the axis, but at the bottommost point. So this, if you select directly, I can write directly x bar is 0. So this was all about the symmetrical cases. If the figure is not symmetric about any axis, you can directly take bottom left corner as the origin. That too, if in the figure it is not given. If the reference point is already given in the question, you have to proceed with that point only. And the reference point can be found like this. The intersection between x and y-axis. Okay. The intersection between x and y-axis is also the reference point. अगर question में आपको x और y-axis दिख रहा है, then it will be directly taken as the reference point. Okay. So after selecting the basic, that is the reference point, we have to divide the entire figure into minimum number of parts. Now, why minimum? You can divide into n number of parts, but why minimum? Because if you select minimum number of parts, then calculation will be less. Okay. Then finally we have to draw calculation table. Calculation table में क्या क्या होता है? सबसे पहले figure, then we have area, then x bar, y bar, AIXI and AIYI. Okay. Then once you write this in the table, the next step to write is the units, because you cannot afford to lose marks in units. सब कुछ आता है but units में marks lose कर दिया. So once you write the table heading, just write the units of the things properly. For example, if it is given in mm, so this will be mm square, this will be mm cube and mm cube. If in the question units are not mentioned, you use like unit square, unit cube, unit 2, etc. But you have to write the units. Okay. Again, just for the reference, I've written here the distances of x will be always right or left from our reference point, and when we are going for y, it will be up or down from our reference point. So if we go up, we will take positive, down negative, right positive and left negative. So this you have to remember and count. नहीं किया है सर. नहीं किए. Find the centroid of the shaded region. So the first step, I can see that figure is not symmetric about any axis, but do I need to check it? Yes, sir. Do I need to check? Correct. Check करने की जरूरत नहीं है, because x and y axis are given. अगर x और y axis given है तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते. We have to take the intersection of x and y as the reference point. So this I will mark as a reference point. And once I marked it as a reference point, I have made a promise to myself that whatever distance I will take from this particular point only. Okay. So after that promise, we go for the table part. Okay. Before table, tell me how many parts you will divide it. Four That's very simply. Yeah, one will be the outer rectangle or square, you can say. We'll see the dimensions later. Then we have a small square there, 4x4. Then we have a semicircle, and then we have a quarter circle. So let me make it. Okay, let us draw the table now. So it will be figure, then it will be area, then x bar, y bar, AIXI and AIYI. Now, once I write this, then directly I will go for the units so that I can secure the full marks. So meter square, meter, then here it will be meter cube, and here it will be meter cube. Okay, now let's start with the things, calculation part. So the first part which we are thinking about is this one. Now let us see whether it is a rectangle or is it a square. Okay, just see the base. It's a rectangle. Okay, so radius is given as 4. That means this distance which is in between is 8. Correct? 8 meters. So the total distance is 8 plus 2, 10 plus 4, 14. So I will write the base is 14, and the height is given to us as 8 plus 4, that is 12. So it becomes a rectangle of 18 by 12. Okay, so 18 to the 18 10 the okay, calculation we will do later. Now we know that for a rectangle, centroid lies exactly at the center. So that means it is 7 from this side and 6 from this side. Is it doubt? No, sir. Okay. Now from which point? From this corner point. Okay, from this corner point. Now you take this corner point and see, this is the one in our main figure. Now our reference point and the object figure or the object reference point is same. So do we need to add or subtract anything? No, sir. Directly I will write x bar is 7 and y bar is 6. Rest of the calculation can be done very easily. We have to see, or we have to emphasize on this point, area, x bar and y bar. Okay, let us go for the second thing. Let us say the second square we take about. So this is square 4. So it's 4 by 4.
Okay, we know that centroid lies somewhere here. क्या हुआ? सर वो 18 नहीं देगा 14 एरिया में 18 और 14 Just a minute. 14 देंगे rectangle की है ना वो 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 18, 12 plus 2 is 14, correct? 14. Okay, 4 into 4, area will be 4 into 4. Now we know that the centroid lies somewhere here. क्या हुआ? Minus क्यों? Area में minus होगा. minus Area में minus होगा because it is the non-shaded portion. Okay, now what was I explaining that this is the center point. Let us locate the center here at the main figure. So this is the centroid. So that means we need to reach here. We need to reach here from our reference point. So just tell me how much I have to travel in x and y. Y direction 10 meters. x2 y X will be 2 and y will be 10. I will write x2 and y will be 8 plus 2 is equal to 10. Y में 10. Okay. Then finally, okay, not finally, we have two more. So let us say now we take the semicircle part. Okay. Semicircle again, it is not a part of shaded region, so it will be minus of pi into r square divided by 2. Okay, that is the formula for semicircle. Now for semicircle, we know that centroid lies somewhere here at this point. Okay, and it is at a distance of how much? 4r by 3 pi. Correct. 4r by 3 pi. 4r by 3 pi from which end? From the diameter end. Mind Diameter. it is 4r by 3 pi from diameter end. Okay, so I will make it here, or rather I will mark it here on the main figure. So this is our centroid here, and we know that this is the distance which is from diameter end. It is 4r by 3 pi. Now I need the distance from my reference point. मुझे यहाँ से ये centroid तक पहुँचना है. So what can you tell about x and y? Sir, x will be 6 and y will be 4r by 3 pi. X will be 6, 2 and here 4. Yes. Total आठ है तो ये 4. So 4 plus 2 6 will be x and y will be 4r by 3 pi. So 4r by 4 3. into r divided by 3 pi. So okay, now let us go for the next one, last one. Last one is a quarter circle of this kind of shape. Okay, and the radius is 4. Now we know that, okay, first of all let me write the area. Minus pi into r square by 4. Okay, minus pi r square by 4. Now we know that centroid lies somewhere here. Which is at a distance of 4r by 3 pi from the sides making right angle triangle. Okay, mind well that it is 4r by 3 pi from the sides making right angle triangle. So now let me make it in the main diagram. So let us assume that this is the centroid here somewhere, and we know that the distance from this right angle side is 4r by 3 pi from here and 4r by 3 pi from here. Okay, but we know the distances from this point, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, but that is not our distance of interest. We need the distances from our reference point. Our reference point means I need this distance and I need this distance. So can you help me with that? What will be that distance? X-axis में 4r by 3 pi minus 4r by 3 pi and y में 12 minus 4r by 3 pi. by 3 pi So and basically what we are doing, we know the total length and we know the sum part of the length. So total length minus that 4r by 3 pi will give you the remaining length. So here I will write what? I will write 8 plus 4r by 3 pi plus 10. 10 plus 4r by 3 pi. How? Yes, sir. Sir, 14 minus 4r by 3 pi. minus 4r by 3 pi and X will be 14 minus 4r by 3 pi. 14 minus 4r by 3 pi. 14 minus 4r by 3 pi. Okay. सर ऑल टोटल नहीं आएगा ना सर 14 अलग रहेगा ना इसमें 14 अलग रहेगा 14 डिवाइड नहीं होगा ना 3 pi Yes. फ्लो में पूरा 14 अलग होगा. It is like this. 14 minus 4r by 3 pi. And for y का total कितना है? 8 plus 4 12. So it will be 12 minus 4r by 3 minus pi. 4r by 3 pi. Okay. Now I will give you time for calculation because after writing this also students make the mistake in the calculation part. So let's give you 2 minutes time to calculate all the different values. 14 into 12. 14 into 12 is how much? 168. Then if you multiply 168 into 7, what you are getting? 1176. 1176. 1176. And here 100. 100. 108. Then here it will be minus 16. Minus So this will 16. become minus 32. And this will be Minus 160. Okay. Now give me this answer. Minus 25.13. minus 25.13 Minus 25.13 into 6. minus Minus 150.78 150.78. Okay. Then here we Minus have 6. 42.46. एक मिनट पहले ये Minus 42.46. 4 4 16 divided by 1.69. 1.69 1.69. yeah 1.69. So 1.69 into 6 Minus 42.46. minus 42.66 minus 42.66. Actually it is 1.69 into minus 25.13. Okay. Now finally we have this minus pi r square by 4. 12.56. Minus 12.56. Minus 12.56. 12.56. Okay, minus 12.56. Then here what you do is maximum of you make the mistake here. First you solve this part. 4 into 4, 16 divided by 3 pi, and then do 14 minus 1. 1.69 Final answer is 12.30. This is 1.69, and 14 minus 1.69 give you 12.31 12.31. Okay. Similarly here also 4r by 3 pi will be 1.69. 10.30. 12 minus 1.69 will be 10.30. 10.31 31 or 30. Let it be. Okay. Then AIXI minus 12.56 into 12.31. 154.48. It will be minus 150.48. Yes, sir, yes. And then here also minus 12.56 into Minus 12.3. 129. minus 129.36 Okay, minus 129.36. So with this we have done all the calculations. Now we have the formula with us that x bar
x bar is equal to summation of ai xi divided by summation of ai. So what we need is the summation of this column ai xi. Sir, 14 minus 1.69 करेगा ना? Yes, 14 minus 1.69. सर AI XI में minus 42.466 AI XI 838.74 आया है। कितना? 838.74 आया है 151. अच्छा, ये 151 आता है मेरा 154.48 आया है ना? ऐसा कैसे आना सर है? y bar 10.31 आएगा। हाँ, 10.31 is okay. 10.3 या 10.3 is okay. 10.3 आया है AI XI आ रहा है 842.8 842.8. Yes, sir. 842.8 कुछ तो झोल हुआ एक मिनट। 158 कितना है? ये क्वार्टर सर्कल के लिए ऐसा क्या है? सर minus 154.48 154.48. Okay. So now if you do the total, 106 minus 32 minus 88.74 38.7. 88.7. Okay. So we have this value, and then in the denominator we need summation of ai. ai मतलब 114.31 114.31. So we can have the answer for x bar as 838.7 divided by 114.31. 7.33 7.23 or 7.33. Okay, that's okay, no problem. Then for y bar we have, okay, I will write the formula first. Y bar is equal to summation of ai yi divided by summation of ai. So ai yi summation, that means I need the summation of this particular column. 676.18 75.9 ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा. 675.98. Okay, लो 675.98. ठीक है, divided by summation of ai, which is same 114.31. So here if you divide, what you get? 5.91 5.91. 5.9 5.9, 5.91, 5.92. All the answers are correct. So we got x bar and y bar. So finally I will write centroid is lying at distance x, that is 7.33, comma it will be 5.91, and finally I will write units as meters. Is it doubt? No sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So let us go for the next question, please. And the question is this one. Find the centroid of the shaded region. And the question was asked in December 2017 for 8 marks. Okay. So first of all, again, we will not check for the symmetry because already x and y axes are given. If x and y are given, directly we will select the intersection as the reference point. So this is my reference point, and when selecting the reference point, we have to do this. Okay. So what is that promise? Whatever distance we will take from the reference point only. Correct? Yes, sir. yes sir Yes, sir. So now, okay, so that's the promise we have made. Then we have to divide this entire object into minimum number of standard parts, for which I have already given you one hint. And what is that hint? Wherever you see an inclined line, there will be a triangle. And wherever you see a curve, there will be either circle or semicircle or a quarter circle or a sector. So usko apply करेंगे. So I can see here a very good inclined line here. So what I will do with the reference of that, I will make a dotted line and I will consider this as the triangle. और ये तो सामने सामने दिख रहा है, it is a quarter circle. So now can you tell me what are the three different parts? rectangle What is rectangle or triangle? Three parts. It will be only three parts. One will be rectangle, one will be triangle, and one will be sector. Or not sector, you can say a quarter circle. सर सुनो ना, हाँ बोलो. सर अगर लेंथ और ब्रेड्थ भी अलग अलग देगी तो रेक्टेंगल लेगा ना? Yes. तो सर अपने पीछे अलग अलग का तो अपने स्क्वायर नहीं, कहाँ स्क्वायर बोला? रेक्टेंगल तो बोला था. देखो. और एक कर सकते हैं ना अपन तो लोग सर हाफ आएगा ना? सर. कहाँ है? और एक कर एक सकते मिनट, उसका डाउट क्लियर. फर्स्ट वाला हाँ, फर्स्ट वाला क्या? 14 into 12. रेक्टेंगल तो लिया मैं 14/12 का. हाफ इंटू बेस इंटू 1 का. अरे वो ट्रायंगल है. हाफ इंटू बेस इंटू प्रॉब्लम फॉर ट्रायंगल बेटा. हाँ. हाँ, अभी और कोई डाउट पूछ रहा था, बताओ क्या था? सर ये जो दोनों लाइन है ना, इंक्लाइन लाइन हम लोग एक स्ट्रेट लाइन भी ऐसी बना सकते हैं ना इधर से. किधर से? इंक्लाइन लाइन से. इंक्लाइन लाइन जो उधर से स्ट्रेट नीचे नीचे यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे. नो 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 नो. क्यों? अच्छा देखो, क्यों मना कर रहा हूँ? चलो ठीक है, ले लो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो लो, ये तो मैंने बना दिया. आगे क्या करोगे? सर ये एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, फिर वो एक बराबर. स्क्वायर रहेगा और बाकी उसको सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा. नो प्रॉब्लम. यस, यू कैन गो अहेड विद दैट आल्सो. अभी सिर्फ मिनिमम ना. यस अब यहाँ भी मिनिमम ही हो रहा है ना बेटा, यहाँ भी तो तीन ही हो रहा है. मिनिमम दोनों सेम ही बन रहा है सेम ही बन रहा है ट्रायंगल, स्क्वायर और क्वार्टर सर्कल, यहाँ भी वही बन रहा है. बट यहाँ पर ये इसलिए चल जा रहा है बिकॉज यू आर दिस पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है टॉप पे और ये वाली बॉटम हाँ सर, वो दोनों सेम है. हाँ, इसलिए वो चल रहा है. अगर वो वैसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा. यस सर. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर दोनों पॉइंट सेम है देन इट कैन वर्क. So you can go ahead with both the combinations. It's correct. Okay, so I will go for this rectangle, big rectangle minus triangle minus the स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है? 60 40 रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है सर। ये 60 है, ये 40 है. 100 और तो 40 टोटल बेस 100 और 40 आ रहा है और इसमें। हाइट है 100 और हमारी 40. 40. तो रेक्टेंगल ही हुआ ना. यस सर। Okay. So now we will go for the table part. So it will be figure, then it will be area, then it will be x bar, y bar, AIXI and AIY. फॉरन में क्या लिखूंगा? यूनिट्स. mm दिया है तो it will be यूनिट mm square, mm स्क्वायर। mm cube and mm cube. This हर all, स्टैंडर्ड के हर प्रॉब्लम 8 मार्क्स के आते हैं। yes, mostly 8. और अगर तुम लोग लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें 10 मार्क का ही पूछा है. और ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क का भी आ जाए, बट ऑन एन एवरेज इट इज प्रॉब्लम आस्क फॉर 8 मार्क्स. Okay, so first figure is we have considered to be as a rectangle. So I will make a rectangle here, and rectangle the base is 100 and the height is 40.
and we know that the centroid lies exactly at the center here. Okay. So now let us locate this point in our main diagram. So let us assume that this is the point. This is the point where the Right. rectangle centroid lies. हाँ बोलो. सर क्वेश्चन में अगर तो ये आंसर शीट पे ये डायग्राम बनाना रहेगा मेन डायग्राम वापस. Not required, but बनाओगे तो ही तो समझ में आएगा कौन सा डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो. सर क्योंकि आपको roughly कर सकते हैं. क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मार्क करना जरूरी नहीं है. मतलब जरूरी नहीं बोल रहा हूँ, अलाउड नहीं है. अच्छा वो तो ऑनलाइन है. हाँ अभी ऑनलाइन है फिलहाल, बट नॉर्मली ऑन द क्वेश्चन पेपर यू डोंट हैव टू मार्क एनीथिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पेपर में बना ही देते हैं सो दैट इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस ऑन. ओके, सो एरिया विल बी 100 by 40. अब नाउ वी नो दैट व्हाट फॉर अ रेक्टेंगल इट विल बी फ्रॉम हियर 50 एंड फ्रॉम हियर इट विल बी 20. करेक्ट? 20. Yes Yes, sir. फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट. अब ये कॉर्नर पॉइंट और हमारा रेफरेंस पॉइंट दोनों सेम है. Yes, Yes sir. sir. So that means we don't have to add or subtract anything. Directly I will write 50 and 20, whatever we have discussed. Okay, now let us go for the next one. Let us say it's a quarter circle now. So quarter circle is this in this orientation with a radius of 40 and this is 90 degree. And for a quarter circle, we know that centroid lies exactly here, which is at a distance of 4r by 3 pi and 4r by 3 pi from the sides making right angle triangle. Okay, so let me locate it at our main diagram. So let us say it is somewhere here, and we know that the distance from right angle side is this one, that is 4r by 3 pi from here, and it is 4r by 3 pi from here. Kisi ko doubt? No, sir. Now we know this distance, but we are not interested in this distance. We are interested in this distance. From our centroid it is how much, or from our reference point it is how much? So what is 100 minus 100 minus 100 minus 4 3 r pi. upon 3 pi. it will be 100 minus 4r by 3 pi in x. और एरिया तो मैं लिखना भूल गया, so it will be minus of pi into r square divided by 4. And what about y bar? You can say I need this distance now in y. तो वो तो सेम ही रहेगा, 4r by 3 pi रहेगा, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. Yes sir. So it will be 4 into r divided by 3 pi. चलो तो ये भी हो गया, इसका काम भी हो गया. Now let us go for the third one. The third object is this, a triangle or right angle triangle. So I will make the same orientation here. This is 90 degree, and we know that, okay, first of all, base and height of a triangle. Height is given as 40, base is given as 60. So area is minus of half into base into height. ये तो हो गया triangle का area. Now for a triangle, we know that from this point, which is making right angle triangle, centroid lies somewhere here, which is at a distance of b by 3 and h by 3. किसी को doubt? H by 3. No, sir. No sir. Now locate this point in our main diagram. Okay, I will erase this the things for the other ones. So now if I locate this point here, it is somewhere here, and we know that the distance from here to here कितना है वो? b by 3. That means 60 by 3. 60 by 3, which is equal to 20. And from here to here, it is 40 by 3, which is coming around to be, I think, 13.33. 13 upon 3. 13 upon 3. 13.3. 13.33 is correct. Now, we are not interested in this distance from here. We are interested in the distances from our reference point. तो यहाँ से यहाँ तक का distance भी क्या हो जाएगा in x? It will be same 20 because it is same parallel lines. Okay, so x bar I will write 20. What can you tell about y? 40 minus 40 minus 4r by 3 pi. Yeah, it's very simple. मेरे को total distance मालूम है 40, इसमें से मुझे 13.33 मालूम है. So it will be 40 minus 13.33. So सर now ऐसा नहीं कर सकते क्या कैसा? सर? हाँ बोला ना. जैसा अभी अपन को पूरा साइड का पता है 40 है टोटल, तो हाँ. 40 माइनस 4r by 3 pi नहीं कर सकते? हाँ 4r by 3 pi triangle के लिए. नो सॉरी, ट्रायंगल के लिए नहीं, सॉरी सर. हाँ. ट्रायंगल के लिए कर रहे थे. अरे ये triangle के लिए करा ना भाई. हाँ तू ये कर सकता है, बहुत से बहुत 40 माइनस डायरेक्ट लिखने की जगह पे तू 40 माइनस h by 3 लिख सकता है. H by 3. 40 माइनस 40 by 3. यस सर, मैं कंफ्यूज हो गया. टोटल इज 40, उसमें से मुझे ये पार्ट निकाल देना है बिकॉज़ आई नीड ओनली दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का. तो टोटल 40 है, उसमें से ये डिस्टेंस 40 by 3 है, माइनस करोगे यू विल गेट दिस आंसर. Okay, so now yes, we are ready to solve. So I will give you 2 minutes time again to get the answers for me. In the meanwhile, if anyone has doubt, they can ask. सर ये x कैसा है? किसका? ट्रायंगल का. x बार किसका? ट्रायंगल का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो? ट्रायंगल का. ओके, फॉर अ ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो. मैं इसको अलग से बना रहा हूँ ट्रायंगल को. ठीक है, ये ट्रायंगल है. फॉर ट्रायंगल वी नो दैट इफ इट इज अ बेस, ये 60 है, ये 40 है. ठीक है, ये 40. नाउ वी नो दैट सेंट्रोइड इज समवेयर हियर व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस जो है हमारा 60 by 3 दैट इज 20 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम टॉप हो जाएगा h by 3 मतलब 40 by 3. सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है. एक जस्ट नहीं, आई थिंक इट्स ओके फ्रॉम माय साइड. इज इट लैगिंग फॉर ऑल? Yes, is it lagging for all? 1256.63. Okay, 1256.63. Okay, take it.
1256.63. Now what you do here to avoid calculation mistake, you first solve this part. 4r by 3 pi. 83.02. 83.02. 6.03. 83.02. Okay. Total 0. Okay. Next. Total. टोटल बता रहे हो। Total ले. Okay. Okay. So total is 83.03 या 02 लेना बोले लो. Okay. This 4r by 3 pi down. 16.97. 16.9796 जो लेना you can take. Then if I go for this, चलो इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं. What will be AIXI for this second one? Minus Minus 5.42 एक एक कोई एक minus 10432.9.42. कुछ नहीं समझ रहा है. 104. minus 1043 25 25.42. ओके ठीक है. बाकी को जिसका सर 3.22 हमारा 29.192 आया. हाँ आने दो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके व्हाट अबाउट AI Minus 21,333.23. No, sir. minus 21325. 21325.01. 2132 5.01 5.01. Okay. So this is done. Third part is Minus 1200. minus 1200 Minus 1200. So 12 into 2 is 24, so it will be minus minus 24,000. 1000. सर उसकी वैल्यू भी नहीं 26.66. and 26.66 26.66. 26.66 into 1200 minus Minus 31. minus 31,992. 31,992. yes sir approx value वही है 0.00. Okay. So let us go for x bar now. X bar is summation of AI xi divided by summation of AI. So we need all the summation of AI xi column. That means this column we need the summation and summation of area. That means this column we need the correction. हाँ 7 1. 716.58. अरे कोई एक बता रहे 71,670.80. कोई एक बोलो. 674 हैं. दूसरा भी बोल रहा है. कोई एक बोल रहा है. 7167. लेकिन हमारा आंसर ये सबसे अलग क्यों हो रहा है? हमने एकदम right 0.58 4.58. 4.58 Okay. Then what about area? 1,543.37. Okay. So this will be 1,71674.58 divided by it is 1,543.37. So finally what we are getting here? 46.44 Okay, 46.44 mm. And then if I go for y bar, I will have summation of AI yi divided by summation of AI. So I need this summation AI yi. 26,666.79. 266.99 82. 0.99 अब वो 8382 थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा. So this will be 26682.99 approximate divided by 1543.37. So finally what I will get? 17.28. 17.28 mm. So finally I will write that centroid is at a distance of 46.44, 17.28. And this is the final. सर हमारा जो x है वो 45.79 आया. एक सर AI की एडिशन है ना वो माइनस में आ रही है. AI एडिशन माइनस में पॉसिबल नहीं है. क्यों मालूम है? ये 21 और 31 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 62. 80,000 में से 62,000 माइनस करोगे तो माइनस में कैसे आएगा? माइनस में पॉसिबल नहीं है. तुमने 80,000 को 8,000 दिया होगा, उससे शायद माइनस मारा है. एक जीरो गायब हो गया होगा सर. सर मैंने सीक्वेंस चेंज की थी. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उससे कुछ सर मैंने सीक्वेंस चेंज की थी ट्रायंगल का पहले और फिर भी माइनस में आ रहा है. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तुम ऊपर नीचे सीक्वेंस कुछ भी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर शुड बी सेम. तो सर मेरे माइनस में क्यों आ रहा है? नहीं आएगा. तुमने कैलकुलेटर पे क्या दो बार किया मैंने. कैलकुलेटर पे क्या लिखा है बताओ. मतलब बोलो क्या है? तुमने क्या लिखा बताओ कैलकुलेटर पे. 80,000 minus 319920 minus हां एक मिनट 9920 0 नहीं. 20 कहां से आया? तो जीरो ही आ रहा है मेरा वो कहाँ है? की मैंने. तो ही है. 31992.0 आया होगा वो. 31992.0 था वो. ठीक है. नहीं सर मेरा वो पॉइंट में आया ही नहीं था. हाँ तो कुछ भी नहीं आया होगा. आया था. हाँ तो 31992 आया होगा ना. yes sir जीरो भी आया था सर. नहीं आएगा. चेक एक बार वापस से चेक करो. वापस से मल्टीप्लाई करके 64.37 से. जस्ट मल्टीप्लाई दिस 24,000 सॉरी 26.66 into 1543.37 करके देखिए. हाँ चल जब तक तुम्हारा डाउट क्लियर होगा. दूसरा क्या डाउट है? 1543 से नहीं -1200 से. -1200 से क्यों? मल्टीप्लाई. हाँ सॉरी सर, आपने टोटल हमने टोटल बोल दिया. इट विल बी 12 into 26.66. हाँ ईमान बोलो क्या डाउट है? सर हमारा जो मेन आंसर है वो 45.789 एंड 17.27 आया. तो एक्स बार में तुम्हारा कुछ गड़बड़ है. थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि तुम्हारा यहाँ का टोटल शायद मैच नहीं कर रहा होगा कुछ. एक्स AI एक्स. हाँ और सर हमने वो एग्जैक्टली आया पाई की वैल्यू मतलब डायरेक्ट जो 4 into 40/3 पाया था उसी को हमने हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा है. राइट होना चाहिए ना. 46.4 बोलो या 45 point something बोलो, both are approximately correct. Yes, yeah. Velocity. What velocity? is zero at the instant of Correct. Velocity is zero at that particular instant. Correct. Or okay. So let me ask you another way. ICR या तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर.
Yeah, on the body. Correct. Perfect. That's the second point. Third point. Let me give you another. Let us define the Perpendicular. question. No, that is not the property. Change होते रहता है from time to time के साथ change होता है. Correct. The ICR changes from time to time. It is not a fixed point. At that instant, it is fixed. But if the time changes, the velocity changes, and if velocity changes, the ICR also changes. So we have this one. Velocity is 0 at the instant of interest. Second is it may lie inside or outside the body. And the third one is it is taken as a reference point by which the other velocities of other points are determined. And the fourth one is it changes from instant to instant. So whatever you have told to me, they are all on the screen. So this is a very important question for your oral exam also, to solve the problem also, and for your end semester exam theory part also. So that's why this is for you. So this was the thing which I want to convey, and then we can now start with the problem side. And so before that, steps to solve problem. Steps is locate ICR. ICR will be, number of ICRs will be equal to number of links in the given diagram. जितनी लिंक होंगी उतने ICR होंगे. Second point, write the name of the link and its corresponding ICR. उसके बाद write the name of points on that link. Then we have write the formula for velocity, and the formula is V is equal to R omega. And then find the distances which are required by sine rule and cosine rule, or any geometrical method like Pythagoras theorem and so on. And then finally substitute the value, and then you will get the required answer. And finally write the answer. So this is our promise that we'll be following this steps only for any problem of ICR. Okay. So what is the important promise which we make in this particular topic? Reference point जो रहता है. Correct. reference Whatever distance I will take from the reference point, and reference point is nothing but what? ICR. ICR. So whatever distance I will take from ICR only. And one more shortcut I have given you. Basically, to locate ICR, what we do? We draw perpendicular to the velocities. Correct? Yes, sir. When we draw perpendicular to velocities, wherever they meet, that will be ICR. So that is a common logic. Second thing, which the shortcut I have given you, if you are not able to get Extend the link direction, you just extend the link which is hinged. जो भी link hinged होगी उसको आप extend कर दो. You will get the same answer or the same location of ICR. So let us incorporate all these steps in some of the problems. So the first problem which I have taken for you is this one, and you can see सर एक बार the बताते हैं ना वो velocity अगर 0 रहेगी तो उसको ही लेते हैं ना. हाँ, ICR. yes, directly directly the hinge point is nothing but the ICR. One of the ICR is the hinge point because it is a point of zero velocity. Okay, so the question which I have taken for you is the last year question. In the mechanism of figure 1 is position shown. The angular velocity of bar AB is 3 radian per second clockwise. Using ICR method, calculate the angular velocity of BC and velocity of slider C for this position. वो तो हमको check ही नहीं करना, हम solve करेंगे, automatic answer आएगा. And here you can observe it is December 2020 for 10 marks. Very simple problem for 10 marks. Okay. So here I can see the diagram, and how many links are there? Can you tell me how many links? Links are only links. Just observe link AB. A or B connected है, B or C connected. Yes, sir. Okay. So 2 links. So if there are 2 links, how many ICRs will be there? 2 ICR. 2 ICRs. Now let us try to locate these 2 ICRs. Now if you observe at point A there is a hinge point, and I have given you a shortcut. जो भी hinge रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा ICR होगा. ICR. So I will write that this point A is nothing but my ICR for AB. Okay, or let us say I will write it I1. Okay, I1. Yes, sir. Now for this link BC, we need to draw the ICR, or we need to locate the ICR. तो अब just check करो BC के लिए देखना हमको. तो C के लिए आ जाओ. C का रोटेशन और C का ट्रांसलेशन इस डायरेक्शन में ऐसे x में, yes or no? Yes, sir. It can move either in right side or right side. So अगर मैं इसका perpendicular बनाऊं, so it will be somewhat like this. Okay, I am drawing the perpendicular to the direction of velocity. This is 90 degree with the velocity. ये बन गया. और दूसरा हिंट मैंने आप लोगों को क्या दिया है? Just extend the link which is hinge है तो वहाँ से extend करना. ये वाली link hinged है, AB link hinged है. तो मैं क्या करूँगा, इसको extend कर दूँगा. I will just extend the link which is hinged, and wherever they meet, that will be your ICR. So I will write ICR. I2. So this will give you, this itself, only this making 2 lines will give you 2 or 3 marks in your main exam. अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, just by locating this ICRs. Is it simple? Yes, sir. Okay. So now let us go over by our process. जो हमको मिलता जाएगा वो लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे. So let us start. पहली लिंक कौन सी है? Point AB. Link AB. Okay. Link AB. AB. जैसे लिंक AB में कंसीडर किया, उसके फौरन नीचे उसके पॉइंट लिख दो. Points are point A and point B. ठीक है, लिख दिया. जैसे पॉइंट लिख दिया, just write the formula. So you write VA. Velocity at A is equal to what? हमको मालूम है. 0 रहता है. Zero, because it is a point of point है सर वो, और ICR है. hinge point पे velocity हमेशा 0 रहती है. So V equal to 0. Now for VB. Okay, first of all let me write here link AB. Link AB के लिए corresponding ICR कौन सा है? I1. I1. That means whatever distance I will take now from I1. So VB is equal to R I1B. It is distance from ICR to that particular point. So it will be R I1B into omega Omega AB. Put out a formula में. No, sir. Okay. Now in this चलो ठीक है, मैं लिख के मैं छोड़ दूंगा, थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, बाद में उसके ऊपर आते हैं. Now let us go for link BC. ठीक है. So for link BC the corresponding ICR is I2. So by writing this, what I am confirming to myself is whatever distance I will take from I2 only. Okay. Now let us write the points. So points are point B and point C. Okay. Now point B, I will write VB. VB is equal to R
distance from ICR to that particular point. I2. So it will be I2B. I2B. The distance from ICR, which is I2, distance from ICR, which is I2 to that particular point, that is B. So it will Omega be BC. into omega BC. Similarly, BC. for points, I will write BC is equal to R I2C multiplied by omega. Omega BC. Any doubts? BC. No, No, sir. sir. Now, before proceeding further, we have to find out all the distances. Distances से मेरा मतलब है this one, R I2B, R I2C, and R I1B. Now, from the diagram, you can see that R I1B is already given to you as 0.15. Correct? Yes, sir. So pull down. Now our requirement is finding out R I2B and R I2C. Now just come to here on the right hand side diagram. I2B or I2C. That means I need this length I2B and I ओमेगा need. ए बी और I1B है तो निकाल के लेंगे. हाँ मैं आंसर सब बाद में निकालूंगा लास्ट में. इससे पहले मैं जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर ले रहा हूँ. R I2B और R I2C ये दो चीजें मुझे चाहिए. So I will consider this triangle. Let us consider triangle I2BC. Okay, I am writing here. In triangle I2BC. Okay. So what we have? एंगल पता है डायरेक्ट. BC given है. BC given है. Then. BC given. Okay, one length is given और और सर और B perpendicular है, angle 90 degree हो angle जाएगा. एंगल 30 यहाँ पर 30 देखो, एंगल ये 90 दिया तो ये भी 90 हो जाएगा. करेक्ट. 90 हो जाएगा. और सर नीचे यहाँ पर ये 60 दिया है तो ये हो ये जाएगा 60 given है. 30 degree. तो 30 90 ये कितना हो जाएगा 60. 60. 60. नाउ इट्स 30 60 90 ट्रायंगल. तो हम लोग साइन रूल कोसाइन रूल की जगह Sine rule. नॉर्मल भी जा सकते हैं ना. 30 60 90 ट्रायंगल तो वी कैन गो सर फॉर हाइपोटेनस वो लगा सकते हैं cos थीटा से sin थीटा से I2 की वैल्यू. करेक्ट. वी कैन अप्लाई sin थीटा. लेट अस से आई विल गेट sin थीटा लेट अस से sin 30 इज ऑपोजिट इज I2B डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. नहीं दोनों नहीं मालूम है तो नहीं चलेगा. cos sin 60 लगाएंगे सर sin 60 हां sin 60 लगाएंगे तो हो जाएगा. ओके. हाइपोटेनस मिल लेट जाएगा. अस गो फॉर sin 60. sin 60 is opposite is this BC divided by hypotenuse is I2C. Okay, the side opposite to 90 is hypotenuse. So BC is known to me, so I will write sin 60 is equal to BC 0.24 divided by I2C. So from here I will get the value of I2C 0.277. 0.277 meters. Now similarly now if I apply let us say cos cos 30 और cos 30 भी ले सकता हूं या तो मैं sin 30 भी ले सकता हूं अभी. ओके. sin 30 is opposite हमको मालूम है it is I2B divided by hypotenuse अभी हमने निकाल ली. It is 0.277. So I will get I2B from here 0.138. 0.138. देखो ये मैंने जो निकाला ये नॉर्मल साइन और कॉस से निकाल दिया बिकॉज वी नो दैट वी कैन अप्लाई साइन रूल एंड कॉस रूल. बट अगर ये नहीं आता है तो आप लोग कौन सा रूल लगा सकते हो? Sine. Yes, Sine because rule लगा सकते three angles are known and one side is known. You can apply sine rule. Okay, वहां से भी आंसर सेम ही आएगा. So now all the distances are known. Now we can use our regular procedure to solve the problem. अब देखो आ जाओ इधर. कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या दिया है हमको? क्वेश्चन में कोई एक चीज दिया होगा. ओमेगा ए बी. ओमेगा ए बी BC given है. ओमेगा ए बी दे दिया है 3 रेडियन पर सेकंड. तो ओमेगा ए बी चेक करो कौन से फॉर्मूले में आ रहा है. इसमें आ रहा है. So here you can find out this one. VB is equal to VB. 0.15 multiplied by omega AB is 3. So what will be VB? 0.5. 0.45 radian per second. 0.45 मीटर पर सेकंड नॉट रेडियन. मीटर पर. हाँ. ये सबके मार्क्स कट जाते हैं. 10 मार्क्स का इतना सिंपल क्वेश्चन है तो यूनिट से मार्क्स कट जाएंगे. Yes, sir. 0.45 मीटर पर सेकंड. अब क्या देखने का जो VB हमने फाइंड हो गया वो कौन से इक्वेशन में आ रहा है? इसमें आ रहा है. तो इसमें पुट कर दो. VB is equal to 0.45 is equal to RI2B. We have calculated that 0.138 into omega. 138 into omega BC. So now I will get omega BC answer from here. 3.26 radian per second. 3.24. ठीक है 3.24 रेडियन पर सेकंड. अब चेक करने का ओमेगा बीसी किधर है? तो ओमेगा बीसी इधर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू RI2C that is 0.277 into 3.2 0.9 आया. 0.8. 0.903. 0.89 भी चलेगा ना सर? हाँ 0.89 0.903 0.903 आ रहा है. ठीक है हाँ चलेगा. ठीक है मीटर पर सेकंड. सो नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में पूछा हुआ हमने फाइंड कर चुके. फिर इस कैलकुलेट व्हाट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीसी मतलब ओमेगा बीसी पूछा था एंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी मतलब बीसी पूछा था. आ गए दोनों आंसर. Yes, Yes. sir. Yes, This sir. was the answers omega BC and BC. So was it not simple problem for 10 marks? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करना देखो कितना सर एक बार BC बनाना पड़ेगा. ओमेगा BC ओमेगा बीसी क्या करूं? तो मेरा अलग ही आ रहा है. क्या आ रहा है? 3 नहीं आ रहा. कितना आ रहा है? मैंने भी वापस रिफ्रेश कर दिया सर को वापस. देखो सिंपल है. VB का वैल्यू तुम्हारा 0.45 आया है और VB we have got 0.45 आ रहा है क्या? हाँ सर वो सब आएंगे सर. हाँ, देखो ना ये 0.45 है तो ये 0.45 इधर आ गया. RI2B अपने पास यहाँ पर है 0.138 तो वो यहाँ पर ले लिया मैंने. तो अब ओमेगा BC क्या हो जाएगा? इट इज 0.45 डिवाइडेड बाय 0.138. तुमने शायद उल्टा डिवाइड कर दिया रहेंगे उसके आंसर आ रहा होगा. सर बोलो. ओके सर. सर पॉइंट के बाद कितने नंबर कंसीडर करना चाहिए? नॉर्मली वी कंसीडर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. टू बी मोर प्रिसाइज 3 डिजिट्स. अगर एंड अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो 2 डिजिट्स. So these are the answers for the 10 marks question. Okay, so let us move forward now.
हाँ, very good question again. Okay, let us read the question. A wheel with an angular velocity, okay, 5 radian per second and radius 1 meter rolls out without slipping on a horizontal surface. Okay, determine the velocities of point B and point D. Okay, also locate ICR. उसके बिना तो समझ नहीं होगा बोला क्यों है. Take distance OD is equal to 0.6 meters. Okay, and this was asked again in December 2020 for 5 marks. मतलब आप देख रहे हो ICR का वेटेज कितना था पिछले मार्क्स में, पिछले पेपर में 5 marks. 15 मार्क्स. 15 ये दिसंबर 20 का ये भी है, 15 marks. ये भी दिसंबर Yes, sir, 20 का 10 मार्क्स था 10 और ये 5 15 मार्क्स का ये चैप्टर में से पूछा हुआ है. नॉर्मली इतना नहीं पूछता है, नॉर्मली 10 12 बस हो गया, ये 15 बहुत ज्यादा हो गया था. ठीक है, तो अपने को अच्छी बात है. ओके, सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस? व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? Locate the ICR. लोकेट द ICR. और यहाँ पर लोकेट ICR के लिए भी तो काफी सिंपल चीज है. Yes, sir. ICR वो सरफेस और वो है उस पे रहेगा ना सर. करेक्ट. केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमने ऑलरेडी बोले थे. इफ देयर इज अ सर्कुलर बॉडी rotating, if there is a circular body rotating on a flat surface, ICR will be the touching point at the bottom. Correct? ये हमने पढ़े थे. Yes, sir. Point number 1. Yes, sir. So let us say this is ICR. The rule number 1. This is my ICR. Okay, let me write it as I. चलो ICR मिल गया, उसके बाद क्या करते हैं? ICR देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक है. हमने हमारी क्लास में शायद पढ़े थे, तुम क्लास में नहीं होंगे. Okay, so if it is like this, there is a body, circular body, and it is kept on a ground, or you can say it is rotating on a ground. So if it is rotating, the point which is at the contact is nothing but the ICR. डायरेक्ट है, उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है. इट इज एन ICR. तो अगर ऐसा कुछ भी दिख गया आपको, डायरेक्टली आप ICR मार्क करोगे, द कांटेक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट B एंड वेलोसिटी एट D. सो आई विल राइट डाउन द फार्मूला. VB इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है अपना? बेसिकली V इज इक्वल टू R ओमेगा. Omega, yes. RIB into omega. Correct. And what is R? R is what we have promised is whatever distance we will take from ICR only. So I will write RIB from ICR to that particular point. R is distance from ICR to that particular point. So it will be RIB multiplied by omega. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So VB I will write it as it is. RIB. Sir, 2 meters आएगा. ओमेगा ये 2 लेना, meters. 2 meters. ओमेगा. ओमेगा एक ही बॉडी ना बेटा, बॉडी एक ही है ना, बॉडी एक ही तो ओमेगा भी एक ही रहेगा. लेट अस से ओमेगा ऑफ बॉडी एक ही बॉडी है ना, उसमें मैं ओमेगा कुछ लिख नहीं रहा हूं, एक ही चीज है तो ओमेगा. VB RIB डिस्टेंस फ्रॉम I to B 2 मीटर. कहां से लाया रे भाई? हां लाया. Sir, radius 1 meter. रेडियस 1 मीटर. So if this is 1 meter, this is also 1 meter. So the total distance is 2 meter. So RIB will be 2 multiplied by omega. कितना दिया क्वेश्चन में? 5. 5 radian. radian per second. I radian. 5. So I get directly it is equal to 10 meter per second. Simple था. Yes, sir. Now let us go for the second part. Second part में क्या है? We have to find velocity at point D. So I will write VD is equal to. वापस से basics क्या है? It is R from ID. I to D. R. Correct? ID. From ICR to that particular point multiplied by omega will be same. Okay. Now we need this distance RID. अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर. This is point O, this is point D, which is there in the diagram. और ये O के just नीचे हमारा है I. ये है I. And we need this distance. What is RI? ये डिस्टेंस हमको चाहिए. हाँ क्या हुआ? सर जैसे वो OD है, हम रेडियस सारा सेम लेते हैं, तो उसको ICR से 1.6 नहीं ले सकते? नहीं ना, D सर्कमफ्रेंस पे थोड़ी है. यस सर. ये पॉइंट D सर्कमफ्रेंस पे नहीं है ना, तो कैसे लेंगे? ओके. बीच में कहीं तो है ना. ओके, सो दिस एंगल इज गिवन टू अस 60 डिग्री और ये हमको दिया हुआ है इट इज कितना दिया है? OD 0.6. 0.6. और ये हमको मालूम है दैट दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सो दिस विल बी 1 मीटर. Yes, sir. ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट, लेट मी गो फॉर अनदर कलर. ये तो जो दिया था उससे किया. वी नो दैट दिस इज 90. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. बोलो 60 डिग्री नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा. हाँ सर, वो एंगल ऊपर से दिया है ना, एंगल का डायरेक्ट. नहीं बराबर देखो उसने क्या किया है. ये ऐसे एरो मारा, ये एरो है और ये एरो है. दैट मींस एंगल बिटवीन दिस टू एरोज, ये एंगल 60 दिया हुआ है. हाँ, सर तो वो एरो नहीं नोटेशन देखो, मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखाता हूँ. ये उसने ऐसा बताया है. उसने क्या किया है, ये बोला है ये ऐसा एरो किया है और ये ऐसा एरो किया है और लिखा है यहाँ पर 60 डिग्री. ऐसा ही है ना? Yes, sir. दिस मींस द एंगल बिटवीन दिस टू एरोज इज 60. मतलब ये एंगल ही 60 दिया हुआ है. ओके सर. तो अब टोटल एंगल कितना हो गया? एक 90 और एक 60. तो दिस टोटल एंगल बिकम्स 150. दिस टोटल एंगल. 180 degree. ठीक है. अब ये ट्रायंगल अगर देखोगे, इन ट्रायंगल OID हमको दो साइड मालूम है 0.6 और 1. एक एंगल भी मालूम है. कौन सा रूल लगाएंगे? Cos rule. Cos rule. If it is two sides and one angle, we use cos rule. और cos rule क्या होता है? साइन रूल भी लगा सकते आपको हैं. 150 कैसा है सर? साइन रूल कैसे लगाओगे? साइन रूल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंगल लगा सकते हैं. 150 टोटल लेगा 90%. 150 कैसा है? 90 plus 60. The total angle between this, ये total angle is 150. 90 plus. हाँ, तो just tell me what's the answer. साइन रूल लगाओगे तो क्या आएगा?
अच्छा कोई तो मुझे चैट बॉक्स में लिख रहा है सर बाकी के दोनों एंगल्स 15-15 डिग्री होंगे। नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। देखो उसका लॉजिक क्या है मैं दूसरों को भी बता देता हूँ, इसने भी चैट बॉक्स में लिखा है, आई डोंट नो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है सर, अगर ये 150 है, ठीक है, तो आपने बता दिया ये 150 है, तो मेरे हिसाब से ये एंगल 15 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 15 डिग्री होना चाहिए, तो ये सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180। और उसका लॉजिक क्यों रॉन्ग है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक क्यों रॉन्ग है? ये 15-15 होता अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती। डिस्टेंस सेम होना चाहिए उसके। हाँ यहाँ पर ये 1 मीटर दिया है और ये 0.6 है, तो दैट विल नॉट नेसेसरी दैट दोनों एंगल सेम हो सकता है 10 और 20 भी हो सकता है 7 और कुछ और हो, तो इट इज नॉट फिक्स दैट इट विल बी 15 एंड 15 ओनली। आई होप इट हैज क्लियर योर डाउट, जिसने भी लिखा था चैट बॉक्स में। ओके सो कैन यू अप्लाई साइन रूल एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर? साइन रूल नहीं होगा साइन रूल का नाम मैं बोल रहा था साइन रूल लेके साइन रूल नहीं रहेगा सर। हाँ दो एंगल दिया रहना चाहिए ना उसके लिए हाँ sin rule बराबर, के लिए। दो एंगल हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक ही एंगल है। सो लेट अस अप्लाई साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है? अरे हमको चाहिए आईडी, बराबर, हमको चाहिए आईडी। cos rule ना सर, कॉस रूल लगेगा, Cosine rule। कोसाइन रूल, हाँ वही कॉस रूल कोसाइन रूल एक ही है। आईडी सर विल राइट आईडी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे दो साइड का स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, करेक्ट? अरे हाँ या ना तो बोलो। ये हाँ सर माइनस 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, बराबर, यस cos Yes, ऑफ sir. एंगल बिटवीन द अपोजिट, सो दिस इज द टोटल एंगल, कितना है? cos ऑफ 150। आईडी हमको फाइंड करना है, तो आईडी के सामने वाला एंगल, आईडी के सामने वाला एंगल है 150। सो जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर फॉर आईडी। 1.54 मीटर। 4। तो अगर ये 1.54 है, so we can now substitute our main diagram. So in the main formula, VD is equal to RID, which we just now found out as 1.54 into omega. We already know it is 5. So what will be VD? 7.7 मीटर पर सेकंड। 7.7 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट ऑब्जर्व, 3 लाइन यहाँ पर लिखे, 3 लाइन यहाँ पर लिखे, एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। हाँ 2 लाइन साइड में भी लिखी है, उसको मैं छुपा दे रहा हूँ, ठीक है? सो इज इट सिंपल? सर आईडी कैसे नहीं समझा। हाँ आईडी कैसे मिला? कॉस्ट रूल लगाया ना मैंने, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ तो पर। शायद आईडी की वैल्यू गलत है शायद। हाँ दैट आई डोंट नो, मेरे को किसी ने बोला सर सही है 1.54। नहीं सर, करेक्ट है 1.54 है, करेक्ट है। सो लेट अस सी हियर। तो मेरी 1.19 आ रही है। नहीं यार ऐसे कैसे होगा? जिसका आंसर रॉन्ग आ रहा है प्लीज रीसेट योर कैलसीज और चेक करो कि आपका कैलसी डिग्री मोड में है, रेडियन मोड से हटा दो उसको, रीसेट कर लो कैलसी। नॉर्मली यू यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ऑल दैट, यू यूज इन रेडियन मोड, यहाँ पर हमको नॉर्मल मोड में चाहिए। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट मैकेनिक्स यू प्लस रीसेट द कैलसी। सर आईडी की वैल्यू 1.51 भी चलेंगी ना? ये जितना चलेगा उतना 1.54 1.51 इज ओके। अच्छा किसने बोला मेरे को आईडी का नहीं समझा, तो शुड आई मेक इट हियर अगेन? आईडी किसको नहीं समझा था? ओके तो सर समझा, बस कैलकुलेशन गलत है। नहीं यार ऐसे कैसे होता है? हाँ सर कैलकुलेशन में 2.03 आ रहा है। नहीं 7.54 आ रहा नहीं सर, बराबर है। पॉइंट आ रहा बराबर है सर, है। 1.54 ही है। ओके नाउ आई एम गेटिंग। किसका आंसर, वो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था जिसने बोला 2 पॉइंट समथिंग? हाँ मैं वही बोलने रहा था, ये जो फॉर्मूला है वो किसका? आईडी स्क्वायर का है। तो व्हाटएवर यू आर गेटिंग इज आईडी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लो, देन यू विल गेट द आंसर 1.54। सर मैं 1.19 बोल 1.19 नहीं यार, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सही है, 1.54 चाहिए। तो सर 1.54 सही है। 1.54 इज करेक्ट, व्हाटएवर आई फील। हाँ, सर। ठीक है तो देखो जिसको अगर साइन रूल कोसाइन रूल नहीं समझता वो यहाँ पर देखो, लेट अस से दिस इज एनी रैंडम ट्रायंगल एंड द पॉइंट्स आर ए बी सी, ठीक है, एंड द एंगल्स आर θ1 θ2 θ3। तो अगर मुझे ये साइड फाइंड करना है BC, तो मैं वही लिखूंगा BC स्क्वायर, जो चीज फाइंड करना है वो लिखा BC स्क्वायर इक्वल टू, अब दो जो साइड बच गए उसको ऐड करो, इट विल बी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अगेन द सेम साइड्स AB AC इनटू cos ऑफ जो साइड फाइंड कर रहे हो उसके सामने का एंगल, तो cos ऑफ θ1। ये है हमारा cos रूल। तो देखो मैंने यहाँ पर भी वही किया, इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम इन ट्रायंगल OID, मुझे फाइंड करना था आईडी, तो मैं लिख दिया आईडी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड क्या है, ये 1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.6 मीटर स्क्वायर, तो 1 into 1 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर माइनस 2 into 1 into 0.6, सेम लिखा। cos ऑफ ये जो साइड फाइंड कर रहे हैं उसके सामने का एंगल व्हिच इज 150, so I have written cos of 150। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। So this we got answer as 7.7 meter per second। यस सर बरोबर। So I think this is all for ICR. What the statement I will make after this completion of topic is you have to stick to your basics. Basic हमारा क्या है, कोई भी पॉइंट पे पूछा हो, the distance which I will take we will take from ICR only। और वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए you either use cos rule, you use sin rule, you use Pythagoras theorem, you use anything, but the distance should be always from the point of ICR। ठीक है, that is the main point which I want to make in this particular chapter। सर वाइवा में भी ऐसी टाइप की क्वेश्चन पूछेंगे ना? वाइवा में यार सॉल्व करने वाला कोई पूछेगा नहीं यार, मोस्टली वाइवा में आपका लॉजिक हम चेक करते हैं, व्हाट इज द कांसेप्ट्स यू आर हैविंग। मतलब ये आईसीआर के वो सब बताओ, वो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ICR बोल सकते हैं। देन लेट अस से ये एग्जाम ये भी क्वेश्चन हमने पूछते नॉर्मली, लेट अस से देयर इज अ बॉडी डिस्क रोटेटिंग एट सम एट ओमेगा एंड इट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस, वेयर विल ICR लाई? तो बच्चे ढूंढने लगते हैं सर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, काय को वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्टली जहां पर टच कर रहा है दैट इज ICR। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके अच्छा अब अभी किसी ने ओरल का पूछा था, मैं ओरल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं।
हाँ, तो सर। मैंने सपोज क्वेश्चन पूछा, देखो हाउ यू आर ट्रिक्ड इन ओरल्स। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वेर इज आईसीआर, तो तुम लोग सब फटाफट बता दोगे इस केस के लिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे तुम लोग Yes, क्या पता बोलोगे, अरे सर आज जो नीचे टच कर रहा है वही तो आईसीआर है। मैं बोलूंगा ओके वेरी गुड। अब मैं पूछूंगा आईसीआर वही क्यों है, व्हाई दैट ओनली इज आईसीआर। दूसरा पॉइंट Sir, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी 0 रहती है। करेक्ट, ये मैंने आपके क्लास में एक्सप्लेन किया था, इसलिए आप लोगों को पता है दैट एट दिस पॉइंट दिस ओमेगा इस तरफ है। अगर इफ आई सी द क्लॉक डायरेक्शन, ओमेगा इस तरफ है और बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, सो दैट बिकम्स वेलोसिटी 0। इफ वेलोसिटी 0, दैट्स व्हाई इट इज एन आईसीआर, बिकॉज़ आईसीआर का डेफिनेशन ही क्या है, अ पॉइंट ऑफ 0 वेलोसिटी। सो बिकॉज़ Zero दिस पॉइंट है 0 वेलोसिटी, दिस इज आईसीआर, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो ये जिसको कांसेप्ट और लॉजिक पता होगा वही आंसर कर पाएगा। ठीक है सर एक बार आपने इसमें ये दिए थे क्या बोलते हैं कि आईसीआर क्या होता है, तो उसमें यही था कि वेलोसिटी एट 0 था, बट हाँ। वो रॉन्ग आंसर। क्यों? 4 ऑप्शन मतलब एक बार आपने दिए थे ना, वो क्या बोलते हैं Quiz. आईसीआर का ट्यूटोरियल टाइप। Quiz. हाँ, उसमें वेलोसिटी एट नहीं, तो आपने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा होगा ना। देखो ये हमारा वाइवा का तीसरा क्वेश्चन। अब आपने बोल दिया सर वेलोसिटी 0, नाउ यू लाइक आस्क व्हिच वेलोसिटी 0, एंगुलर और लीनियर। Linear velocity 0. तो आंसर शुड बी लीनियर वेलोसिटी 0, नॉट एंगुलर। ओके, तो वहां पर मैंने वो 4 ऑप्शन में एक में लीनियर रखा होगा, एक में एंगुलर रखा होगा, एक में रिजल्टेंट रखा होगा। ओके, तो द आंसर शुड बी, करेक्ट आंसर शुड बी द लीनियर वेलोसिटी विल बी 0। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस है थोड़े से। तो एक ओरल में एक चीज याद रखना, जो आपके आंसर होंगे ना उसका हमारे दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एग्जाम में तो घुमाने की कोशिश करोगे, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कभी सुने भी नहीं ना सोचे हो। तो एग्जाम में एक चीज याद रखना, ओरल में जो चीज आपको आता है वही उसके ऊपर ही कमेंट करना है, तो बोलना नहीं आता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम में तो घुमाने की कोशिश करोगे, आपको इतना डीप में लेके चले जाएगा, आप फंस जाओगे। ठीक है, तो घुमाने का नहीं। लास्ट स्लाइड दिखाओ मेरे से पहले। लास्ट स्लाइड, ओके, ये है लास्ट स्लाइड। ओके सर, थैंक यू। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ सिस्टम। फोर्थ सिस्टम में हमको मालूम है फोर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट, नॉट 3, चलो तुम लोग ही बताओ कितने हैं। 4, नो नॉट 4। सबसे पहला बेसिक कितने हैं? सर आपने क्या पूछा? बेसिक व्हाट 2 आर फोर्सेस द, है, फिर उसके सब टाइप्स है सर, कोप्लेनर फोर्सेस है और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। और फिर उसके बाद उसके अंदर है कोलिनियर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, के 4 टाइप्स प्लेनर, है। पैरेलल एंड जनरल। करेक्ट करेक्ट। Coplanar तो बेसिकली देखो में ये भी एक ओरल का क्वेश्चन है, मतलब एकदम चिंदी वाला क्वेश्चन जो होता है, एकदम लो लेवल वाला क्वेश्चन, जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसको हम पूछ सकते हैं ये चीज। दैट टू डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एग्जाम यू वांट टू आस्क ऑन। तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। आप बोलना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम आर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फिर मेरा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, मेरा मतलब एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सो यू शुड आंसर सर द इफ द फोर्सेस आर इन वन सिंगल प्लेन इट इज अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इफ दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स इट शुड बी नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, in coplanar forces what are the different types. So it will be collinear, concurrent, parallel, general. Concurrent means all the forces passing through one single point. Collinear means all the forces passing through one single line. Third is parallel, that means force will be parallel to each other. And general force, it is neither concurrent nor parallel, it is randomly arranged anywhere, so that's why it is a general force system. So this can be very good question for the orals as well as your end semester exam. हाँ बोलो क्या डाउट है? सर कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल और जनरल। Yes correct, वही तो मैं बोला। सर ब्रेक ब्रेक लेना है? नो सर, नो सर। थोड़ा सा ये concurrent force system लेके फिर ब्रेक पे जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। So next question, before going to the question, I will give you some basic idea for this topic. Concurrent force system, that means all the forces are passing through one single point. So what's the first step? मेरे क्लास वाले अच्छे से जवाब देंगे इसको। टेढ़े फोर्सेस को सीधा करना। वो तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बताओ। टेढ़े फोर्सेस को सीधा करना। टेढ़े लोगों को सीधा करना। So resolve the inclined force, that means all the force which are inclined we have to resolve it. So for resolution again I give you the hint, अगर एंगल x से दिया है तो horizontal cos रहेगा, vertical sin रहेगा, डायरेक्टली लिख के दे दिया। If angle is with respect to y axis, horizontal component will be sin, vertical component will be cos. फिर उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है। पार्ट ए इज इफ रिजल्टेंट इज रिक्वायर्ड, अगर रिजल्टेंट फाइंड करने बोला है तो यू विल यूज द फार्मूला r is equal to summation of x square plus summation of fy square. And because force is a vector quantity, it has magnitude as well as direction, तो डायरेक्शन हमको मिलेगा थीटा is equal to tan inverse of fy by fx. And in this you have to remember this part, don't use negative sign in fx or fy while finding out theta. Okay, and then finally depending on sign of fx and fy you will make the resultant in the respective quadrants. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है। अब सेकंड पॉइंट, अगर सपोज आपको दिया है रिजल्टेंट इज गिवन, पार्ट बी रिजल्टेंट इज गिवन, रिजल्टेंट इज गिवन क्वेश्चन में दिया है रिजल्टेंट, उसके अंदर केस ए रिजल्टेंट सब आपने पढ़ चुके हैं, सिर्फ डिवीजन है। रिजल्टेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, resultant is in horizontal direction. So if resultant is in horizontal direction, what I can write for summation of fx? Summation of fx ये दो बार हो जाएगा, y equal to summation of fy is equal to 0. जहां पर रिजल्टेंट दिया है वही जगह पर रिजल्टेंट आएगा। So r is summation of fx because resultant is in horizontal direction and summation of fy is equal to 0. पार्ट बी है, अगर सेकंड केस हम देखेंगे तो केस बी रिजल्टेंट इज इन लेट अस से वर्टिकल डायरेक्शन, vertical direction. So in this case I will write summation of fy is equal to r and summation of fx is equal to 0. किसी को डाउट? नो सर। Case C means let us say resultant is 0.
क्वेश्चन में दे दिया रिजल्टेंट इज 0, मतलब ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल, सो इट सिंपली Summation इम्प्लाइज fx equal fx to is 0, 0 fy and equals also to fy 0. is 0, दोनों 0 हो जाएंगे. अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगेन ओरल क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू रिजल्टेंट इज 0, दैट मींस fx 0 and fy 0, so what can you comment? Sir, there is no force acting. Force नहीं act कर No रही. force existing, no, that's a wrong interpretation, you can lose marks in that. सर तब क्या इक्विलिब्रियम करेक्ट, equilibrium फोर्सेस तो है, देखो Equilibrium, हाँ. देखो आपका जो Force आंसर है. था, हाँ मैं अभी आपको काउंटर करूंगा. देखो ये बॉडी पे फोर्स है 20 न्यूटन का, करेक्ट, और ये भी फोर्स है Yes, 20 न्यूटन का, तो आप ये नहीं बोल सकते दैट देयर इज नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. फोर्सेस तो है, बट उसका एल्जेब्रिक सम 0 है, प्लस 20 Yes, माइनस sir. 20 विल गिव यू 0. यस सर तो एग्जाम में उसमें बताता हूं, एग्जाम में आप लोग एकदम सोच समझ के स्टेटमेंट बोलने का. तुम्हारे System is in equilibrium ना sir इसका. yes, the system will be in equilibrium. The answer will be as fx 0, fy 0, the body is stationary, and because the body is stationary, you can tell the system is in equilibrium. This should be your answer. ओके सर. Okay. Now D part. Part D, let us say resultant is inclined. Okay, resultant is inclined at angle theta. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, summation of fx is equal to r cos theta, rx, sorry, rx is equal to fx equal to rx cos theta, and summation of fy will be is equal to ry, or it can be written as r sin theta. Correct? यस सर. Yes, sir. So only this you have to keep in mind for solving any problem of concurrent force system. Okay, so let us सर ये UT2 में आएगा ना? UT2, yes, it's a part of UT2. Okay. So here again I have taken the example from December 2020 exam for 5 marks. Find the resultant of given force system. Before going ahead, what is the first step? तेरे को सीधा कर. तो कितने लोग टेढ़े हैं यहाँ पर? Two forces. दो force. दो फोर्सेस टेढ़े हैं, तो दो लोग को सीधा कर दो. So to make them align with x and y axis, what we do resolution of force. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर. Okay, I will make it here. This is like this and this is like this. हाँ बोलो. So we were discussing that how to resolve a force. तो फोर्स देखना कहाँ जा रहा है. फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में. तो मेरा एक कंपोनेंट एक डायरेक्शन जाएगा लेफ्ट में, एक डायरेक्शन जाएगा ऊपर. ओके, नाउ एंगल हमको दिया है दैट दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू x इज 30. तो जो कंपोनेंट एंगल को टच रहेगा दैट विल बी cos. सो दिस विल बी 50 cos 30 एंड दिस विल बी 50 sin 30. ओके, नाउ इफ आई लुक एट दिस फोर्स, ये वाला जो 100 न्यूटन का है, आई विल मेक इट हियर सेपरेटली. लेट अस से हियर इट्स 100 न्यूटन फोर्स. डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन एंड लेफ्ट. तो एक जाएगा लेफ्ट में, एक जाएगा डाउन. दिस आर द कंपोनेंट्स. नाउ द एंगल आप जस्ट ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू कौन से एक्सिस आपका एंगल दिया है. तो यहाँ पर भी आप विद रिस्पेक्ट टू y20 बताओ, सेम एंगल चेंज नहीं करना. अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 100 cos 20 100 sin 20. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद रेजोल्यूशन. So the 70 भी आप चलेगा ना. हाँ, अगर आप 50 ये है उसकी जगह पे आप ये 70 लेके सॉल्व करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. बट हमारी क्लास में हम लोग रिकमेंड नहीं किए थे. मैं बोला था जो एंगल दिया उसी से आगे बढ़ो, डोंट चेंज द एंगल्स. ओके, सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू चेंज इट एंड टेक इट फ्रॉम x एक्सिस, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. बट सर हम 70 लेते हैं और तो वो O की तरफ जाएगा और जो y वाला फोर्स है वो ऊपर होगा ना. नहीं, डायरेक्शन सेम रहेगा. जस्ट ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 cos 20 सॉरी cos 70 और ये हो जाएगा 100 sin 70. बस ये डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम. ओके सर. डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा और लेफ्ट में जाएगा बिकॉज़ फोर्स इज गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट. चलो ये सब चीजें हो गई. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ fx, ऐड ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. चलो स्टार्ट करो, क्या क्या आएगा. Minus 100 sin 20. Minus 50 70 minus 50 cos 30 minus Minus 100 sin 20 minus 100 sin. या आप लोग cos 70 20. लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं. तो यस, वी हैव रिटन ऑल द fx Minus 147.5 newtons. minus 147.5 Newton. Okay, Newtons. so this is summation of fx. Now next step I will write summation of fy. Add all the forces in y direction. तो y में तो एक ये ऊपर जा रहा है 50 sin 30, ठीक है, Minus minus 100 cos 20 और Cos क्या है 20. Minus 50. 50. बस ये चीज होती है. So all the things are done. So just again use the calculator and tell me. Minus 118.96. Minus 118.96 Newton. 6 So newtons. we got fy, we got fx. Then I will write r is equal to root of fx square plus fy square. That will be minus of 147.5 square plus minus 118.96 square. So if I calculate and tell what is the 189.49 newtons. 189.49. 49 newtons. Okay, so is the problem complete? No sir. Angle. No sir. Angle निकालना. हाँ, क्वेश्चन में बोला है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स. अगर फोर्स है मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वो अंडरस्टूड है कि आपको थीटा भी निकालना है. बच्चे लोग बाद में क्या ऑब्जेक्ट करते हैं, सर रिजल्टेंट बोला मैंने आर निकाल के दिया ना. भाई रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट थीटा. सो थीटा वी हैव द फार्मूला tan इनवर्स ऑफ समेशन fy by summation of fx. And one thing which you have to remember while finding out the theta is what? Negative sign. Minus Yes, sign. don't consider negative signs. Don't consider negative sign. So it will be 118.96 divided by 147.5. So what's the angle coming out to be? 38.80 38.80 degrees. Okay. It's हमारा 02 आया तो चलेगा ना सर. हाँ चल जाएगा. 18. अच्छा, लोग भी 18 बोल रहे हैं तो मैं 18 कर देता हूँ उसको. So this is 18. अब वो 20 आए बोल दिया उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट में what we are expecting is we should get the answer in the diagram form.
तो डायग्राम फॉर्म बहुत सिंपल है, देखो जस्ट मेक द एक्सिस, quadrant. एक्सिस बना लिए, क्वाड्रेंट बना लिए, उसके बाद Yes, sir. check the direction of fx and fy. fx नेगेटिव, fy भी नेगेटिव, दैट मींस व्हिच क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. फोर्थ Third क्वाड्रेंट quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट ना, फोर्थ कैसे होगा? Third थर्ड quadrant. क्वाड्रेंट सर। Yes, it will be हाँ third सर quadrant. थर्ड है। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये फोर्स बता दिया दैट दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, r is equal to 189.49 and always you show angle with respect to x axis. So this is 38.18. This completes the solution. किसी को डाउट? नो पेरिग्नॉन थ्योरम लगाएंगे? हाँ, पेरिग्नॉन थ्योरम क्या के लिए यूज होता है? हाँ सर नहीं लगाएंगे। हाँ, पकड़ जाएगी ना इसे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगी तो पकड़ जाएगी ओरल में सीधा। अगर तू सपोज तो बोली पेरिग्नॉन थ्योरम लगेगा, मैं बोलूंगा लगा के दिखाओ ना, अब तुमने बोले लगाओ, अब लगा के दिखाओ, ओरल में ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो पेरिग्नॉन थ्योरम हमने डिस्कस किए थे, पेरिग्नॉन थ्योरम इज यूज्ड ओनली टू फाइंड आउट पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ रिजल्टेंट, और वो कहाँ यूज होता है? इट विल बी आइदर इन पैरेलल फोर्स सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में नहीं होगा। ओके सर। ओके, अरे डायग्राम बहुत खतरनाक है, डर गया? नो सर No, sir. इतना खतरनाक डायग्राम डरना चाहिए ना। चलो वही क्या करेंगे, बहुत बहुत टेढ़े लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। सीधे क्रॉस करेंगे, सीधा करेंगे। हाँ, सीधा कर दो, सीधा कर दो, अपना काम सीधा हो जाता है। चलो सीधा करेंगे, क्या करेंगे? ये 100 न्यूटन का फोर्स टेढ़ा है ना, सीधा कर देंगे। हाँ, सीधा कर दो। तो देखो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर, सो आई विल रिजॉल्व इट लाइक दिस, एम आई करेक्ट? यस सर। एंगल Yes, sir. 15, so this will be 100 cos 15 और ये हो जाएगा 100 sin 15। माइनस हम वो माइनस प्लस बाद में देखेंगे जब हम वहाँ लिखेंगे, जब अभी तो सिर्फ रिजॉल्व कर रहा हूँ। नाउ दिस 90 न्यूटन फोर्स, देखो यहाँ पर 90 न्यूटन फोर्स ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में, तो एक कंपोनेंट लेफ्ट में जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, तो दिस इज द रेजोल्यूशन। अब एंगल देखो, एंगल यहाँ दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 30। अगर ये 30 है तो दिस विल बी 90 cos 30 एंड दिस विल बी 90 sin 30। किसी को डाउट? नो सर। ओके, लास्ट वन, ये वाला जो फोर्स 80 न्यूटन का वो ऐसे जा रहा है इधर, सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड एंड डाउन, तो एक कंपोनेंट जाएगा राइट साइड, एक कंपोनेंट जाएगा डाउन। अब एंगल देखो कौन से विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया एंगल? रिस्पेक्ट वाई। y के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। Alternate होगा ना सर? हाँ सॉरी, alternate angle 20 so this will be 80 cos 20 and this will be 80 sin 20। I would request that before starting or solving the problem just check whether you have done the resolution perfectly or not, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने एक भी डायरेक्शन या फोर्स में गड़बड़ किया तो आप साइड में राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखो तो आंसर विल बी रॉन्ग। एक फोर्स भी आपने प्लस माइनस या कंपोनेंट बनाने में मिस्टेक किया, आपका पूरा 5 मार्क्स चले जाएगा या 4 मार्क्स जो भी चले जाएगा। सो beware while making the components of the force। Okay, so now I think we are correct on our part whatever we have done, so let us start with the solution। Summation of fx is equal to, add all the forces in x direction, so it will be minus 90 cos 30 plus 100 cos 15 minus plus 80 sin 20 और कुछ आएगा +15। plus 15, हाँ plus 15 कहाँ है रे भाई? नो सर वो एंगल दिया हुआ एंगल है, है हाँ। fx, summation of fx equal to क्या आ रहा है? जस्ट कैलकुलेट एंड टेल। 76.46 न्यूटन। दोनों का आंसर अलग अलग, कैलकुलेटर सबका सेम है, सेम कॉन्सेप्ट क्या है? 46.01। हाँ सर 46.01। 36.02। हाँ कैसे पॉसिबल है? मेरा भी लगा है। 46.01 है। मैक्सिमम 46.01 ओके, मैक्सिमम लोग का 46 आ रहा है, तो आई शुड बिलीव इन देयर आंसर दैट इज करेक्ट। अब जिसका नहीं आ रहा है प्लीज 46.01। ओके, देन वी हैव summation of fy, add all the forces in y direction, so let us start with minus 80 cos 20 और कोई जरूरी नहीं कुछ भी कभी भी लिख सकते हो, minus 200। हाँ बोलो, अगर पहले 100 cos 30 देन माइनस cos 30 कितना है? 90। cos 15 है। ओके हाँ वो मिस्टेक कर रहे हो तुम। ओके, minus 80 cos fy में क्या आएगा? minus 80 cos 20 minus 200 minus 90 sin 30 और क्या बच गया? कुछ बचा? 200 सर माइनस 200 minus 200 ले लिया मैंने। -100 sin 100 sin 50 ये बच गया। माइनस 100 Okay. So now everything is taken into consideration. So I will write summation of fy is equal to how much? 346.05 Minus 346.05 approximately. 05 Okay. अभी किसी का 343 आ रहा है, किसी का 344 आ रहा है, that is acceptable। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट ज्यादा भी आगे पीछे नहीं आना चाहिए। सर राइट है। हाँ, so as usual fx fy मिल गया, so I will go for now r. So I will write r is equal to square root of fx square plus fy square. So it will be 46.01 square plus minus 346.05 square. So just calculate and 349.09। 349.09 newtons. So this is resultant and the problem is over. 349.09 वही तो लिखा, नहीं हुआ नहीं हुआ एंगल नहीं निकाला। तो निकालो ना, सब काम मैं करूँ क्या? तुम लोग करो कुछ, 82.425। निकाल लिया क्या? ओके चलो गुड। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ fy by fx। तो माइनस लेने का, नहीं लेने का। 346.05 divided by 46.01। So answer is coming out to be 82.425। 82.45, ठीक है, जो भी आ रहा है वो लिख लो। Then finally we have to show it with the diagram। तो बना लिया, this is my x and this is my y, quadrants बन रहे हैं। The positive fx is positive, fy is negative। कौन सा quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट। X positive, y negative, fourth quadrant, correct। So I will make the force here in the fourth quadrant and I will write that this value is 349.09 newtons and the angle we always show with respect to x axis।
So here it will be 82.45 degrees. This completes the entire solution. ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत से लोग एग्जाम में इसको फिगर को देख के डर जाते हैं, अरे साढ़ा तेरा कुछ तो दे दिया, हमको कुछ करना नहीं उससे, हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या है, सीधा कर देने का। So in the first session we completed till the resultant of concurrent force system. Now we will move ahead to the parallel force system. And what does the parallel force system says? If you want to find out resultant, just add or subtract the forces. अगर forces सब x में है तो r will be summation of fx, अगर सब forces fy में है तो सब that will be summation of fy. And if you want to locate the resultant, we need to use Perignon's theorem. And can someone repeat Perignon's theorem for me? Perignon's theorem is the summation of moment of all forces at a point is equals to the summation of is equals to the moment of resultant at that point. Correct. So that is also an oral question, that the sum of moment of all forces about a point is equal to moment of resultant about the same point. That is nothing but the Perignon's theorem, and that is used to find out position or location of resultant only. Okay, next step, the notes or the promises which you have to make in this particular topic is this one. If it is asked in the question to replace by single force, that means the resultant. Question में अगर बोला है कि replace it by single force, that itself means the indirectly to find out the resultant. Second thing, while taking the moment at any point, this is the most important thing. Moment is force multiplied by which distance? Perpendicular distance. Let me highlight that. बहुत important चीज, अगर ये आपने गलत कर दी तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा. So that is the most important thing. Force into the perpendicular distance. अब perpendicular बहुत ज्यादा हाई इंग्लिश हो गया, समझ में आता नहीं अपने को. तो नीचे क्या लिखा है देखो. That is if the force is in horizontal direction. अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है टेक वर्टिकल डिस्टेंस, इफ फोर्स इज वर्टिकल टेक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये हिंदी में, ठीक है, लिखा इंग्लिश में बट समझो हिंदी में. चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच मोस्ट ऑफ यू हैव मेड द मिस्टेक इन द असाइनमेंट पॉइंट. नहीं, ये वाली पॉइंट वो नहीं है, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं. आल्सो नोट दैट इफ देयर इज एन एक्सटर्नल कपल और मोमेंट एक्टिंग, यू हैव टू डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट द मोमेंट इक्वेशन एज इट इज एज पर द साइन कन्वेंशन. डोंट मल्टीप्लाई इट विद द डिस्टेंस अगेन. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर आपको ऐसा कपल दिया है, a couple of let us say 20 Newton meter is acting, and you are taking moment about point A, so you have to take this couple into consideration as it is without multiplying with the distance से multiply नहीं करना है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर let us say it can be a oral question also. Let us say if I am taking moment about point A and there is a couple here also of let us say 30 Newton meter, will I consider this 30 Newton meter in our calculation of moment? Yes or no? No sir, it will be zero. Yes, sir. No Sir. sir. No, sir. कंसीडर करेंगे. बन जाएगी ना ऊपर करने के बाद. देखो, उसने बोला ये ओरल का क्वेश्चन है. मैक्सिमम लोग, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था बहुत से लोग ने बोल देते नो. नो क्यों? बिकॉज यू दिमाग में आपके क्या है कि अगर ये फोर्स, ये पॉइंट है, इसको मूवमेंट से, इस पॉइंट से अगर फोर्सेस पास होते हैं तो मूवमेंट जीरो होता है. किसका मूवमेंट जीरो होता है? फोर्सेस का मूवमेंट जीरो होता है, नॉट फॉर द कपल. कपल का क्या है? एक प्रॉपर्टी है, कपल विद अ फ्री वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर ऑन द बॉडी. याद है फिफ्थ पॉइंट? Yes. Yes, sir. फ्री वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर ऑन द बॉडी. तो मैं उसको ए पे हटा के यहां भी बता सकता हूं ना, इट इज हियर. But same direction or Yes, same sir. magnitude. डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का सेम रहेगा. So that's why it has to be taken in the मोमेंट कैलकुलेशन, जो बहुत से लोग छोड़ देते और ओरल में भी फंस जाते, बोलते कि नहीं आएगा. ठीक है, एग्जाम में समझ जाते तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. ओके, सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. और एक और चीज जो मुझे बताना था वो ये थी कि अगर क्वेश्चन में बोला है रिप्लेस इट बाय अ सिंगल कपल एंड फोर्स एट पॉइंट ए, सो डोंट यूज Perignon's theorem. बहुत से लोग ने अराउंड आउट ऑफ 63 ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव सॉल्वड करेक्टली इन द असाइनमेंट. सभी लोग ने Perignon's theorem लगाया. Perignon's theorem will only be used when it is asked to find out resultant and location of position. The position or location of resultant, that's it. अगर ये दो वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहे, you will not use Perignon's theorem. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so I have taken problem also to. अगर सर रिजल्टेंट क्वेश्चन में नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी. Yes, correct. अगर रिजल्टेंट क्वेश्चन में अगर रिजल्टेंट वर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम. Okay, so again I have taken a question for you. It's a May 2019 question for 5 marks. Okay, डायग्राम दे दिया, डायग्राम हमको खुद को बनाना है. Replace 4 like parallel forces A, B, C, D of magnitude 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton, 20 Newton respectively with 2 meter distance between each other. तो हमको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम हमको खुद से बनाना है. So पहले तो मैं बनाऊंगा, let us say this is a beam, point A है, उसके बाद point B है, उसके बाद point C है और उसके बाद point D है. अच्छा, दोनों हर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसने? 2 meters. This is 2 meter, 2 meter, 2 meter. Then I will make all the forces. फोर्सेस के बारे में क्या बोला है उसने? लाइक पैरेलल फोर्सेस. अब उसने ये नहीं बोला है कि लाइक कौन सा, ऐसे वाले या ऐसे वाले, तो तुम कौन सा लोगे? पॉजिटिव वाले लेंगे. पॉजिटिव. और अपवर्ड वाले लेंगे. क्यों? व्हाट्स द रीजन? Value वाले दे सकते हैं ना. नहीं, इजी पड़ेगा करने के लिए भी. that is not the reason. That is not the reason. Just see the value. 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton, 20 Newton. आंसर पॉजिटिव में दिया कि नेगेटिव में दिया? Positive with पॉजिटिव में दिया. पॉजिटिव means the forces are going upward. That's it. So this will be 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton and 20 Newton. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. सर आपने जो ये बीम लिया है ना, ये वर्टिकल भी ले सकते हैं ना? Yes, you can. No problem. Good question.
गुड क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नो प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज मैंने वर्टिकल लिया, ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो अब मैं कैसे बताऊंगा 5 न्यूटन 10 न्यूटन? राइट साइड। राइट Right साइड। side. तो ऐसे ये और ये, so let us say this is A, B, C and D, correct, no problem, चलेगा, that is acceptable. ओके सर। So diagram is done now. और क्वेश्चन में क्या पूछा है? चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है? A force couple system at point of application of the first force A, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है? A single resultant with respect to first force A, मतलब हमको फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट, सिंपल। RA क्या होता है? We need to find out resultant, that's it. So summation of F y आ जाएगा because all the forces are in y direction. So 5 plus 10 plus 15 plus 20 कितना आ जाएगा? 20, 30, 35, 40, 50 Newton. So because there is no force in x directly, I will write R is equal to 50 Newton because Fx is 0. R मिल गया, this is our single force, but उसको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? क्वेश्चन में आप देखोगे, replace it by a single force, single resultant with respect to point A. That means क्या लगाना पड़ेगा? क्या बोला with respect to? हमको बताओ कि रिजल्टेंट कहाँ रहने वाला है with respect to A. So I will use Perignon's theorem. Summation of movement of all forces about A will be equal to movement of resultant about same point A. Okay. Now let us go for the left hand side. Summation of movement of all forces about point A is equal to. I am taking movement about point A. This point से. So what is our promise? Whatever distance I will take from this point only. Okay. And what? I will take the perpendicular distance. ये दो चीज दिमाग में रखना. Okay. 5 Newton का movement क्या आ जाएगा? 0 because it is passing to same point. Then this is making an anti-clockwise movement, so it will be 10 multiplied by 2, then plus 15 multiplied by 4, plus 20 multiplied by 2. किसी को डाउट? नो सर। 6 होगा 20 multiplied by 6. यस, जाग रहे हैं। किसी को डाउट है पूछा तो बोले किसने, ठीक है। So 20 plus 60, 80 plus 120, so I think 120 और 60, 180 और 200 होगा ना? 200 आ रहा है सर। 200 न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड में अपन क्या लिखेंगे? मूवमेंट, नॉट समेशन, सॉरी, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। तो पहले तो हमको रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑन द डायग्राम। कहां बनाऊं? सर ए के बाजू ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ एक्स। यहाँ पे भी बना सकते हैं ना? यहाँ पे भी बना सकते हैं। डायरेक्शन अपवर्ड होंगी। करेक्ट, डायरेक्शन अपवर्ड होगी। सो लेट अस से आई एम मेकिंग इट हियर, डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड आई विल अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज व्हाट? एक्स मीटर और डी एक्स ले लो, जो तुमको X और D. लेना है, इज इक्वल टू, नाउ टेक द मोमेंट, दिस इज आल्सो मेकिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो इट विल बी माइनस, सॉरी नॉट माइनस, पॉजिटिव 50 into D, करेक्ट? यस बस लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, जस्ट इक्वेट इट, सो आई विल गेट देयरफॉर 200 is equal to 50D and I will get D is equal to 4 meter. 4 meter. सर 4 मीटर। हाँ 4, ठीक है। That means what can you say? Where is the R located actually? सर एट 15 न्यूटन एट पॉइंट ठीक है, एट पॉइंट C पे है, बिटवीन पॉइंट B एंड C ने 4 आंसर आ गया, 2 + 2 4, मतलब एट C पे ही है, बट वो तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वेश्चन में हमको बताना नहीं, क्वेश्चन में हमने D फाइंड कर दिया बस हो गया। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट अभी बाकी है। यस सर। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला देखो, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट A, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट A, तो पेरिग्नॉन थ्योरम लगाओगे? बोलो हाँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं लगाना, नहीं। फोर्स कपल सिस्टम, हम तो डिस्टेंस के लिए लगा सकते हाँ तो डिस्टेंस के लिए लगा लिया ना अपने सेकंड पार्ट के लिए। हैं। मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूं कि असाइनमेंट में सब लोग ने लगाए, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब फोर्स कपल सिस्टम, तो क्या करना है? डायरेक्टली यू टेक मूवमेंट एट दैट पॉइंट, तो ए से बोला है तो मूवमेंट एट ए ले, जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके लेफ्ट साइड। कितना आया था आंसर? 200 न्यूटन मीटर। तो फाइनली व्हाट यू विल शो दैट इन द डायग्राम फॉर्म ए बी सी डी, you will show that the resultant is here going upward of 50 Newton and it is making a couple of 200 Newton meter, मतलब clockwise anti-clockwise, एंटी क्लॉकवाइज। is here 200 Newton meter, that's it, this is the final answer। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर रिजल्टेंट तो पॉइंट चीजें बना रहा है ना? सर रिजल्टेंट C पे बनेगा ना? रिजल्टेंट सी पे बनेगा, लेकिन उसने क्या बोला है? फोर्स कपल सिस्टम मुझे ए पे चाहिए, क्वेश्चन ने बोला मुझे ए पे चाहिए। सर हमें बस इतना ही करना था, मतलब यस, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। अगर सपोज क्वेश्चन ने बोलता फाइंड अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट बी, तो क्या करेंगे? सी पे 200 मीटर का नहीं, मोमेंट बी के लिए मोमेंट B पे मोमेंट लेंगे ना? वी विल फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट बी। ओके लेट अस से, चलो मैं कर ही लेता हूं उसको। लेट अस से देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर। पेरिग्नॉन्स लगाएंगे फिर। नहीं ना बाबा, क्यों पेरिग्नॉस लगाएगा? पेरिग्नॉस थ्योरम जब यूज होता है जब रिजल्टेंट का लोकेशन पूछता है। यहां पर उसने रिजल्टेंट का लोकेशन नहीं पूछा, उसने बोला मुझे ए पे चाहिए, उसने बोला नहीं अभी बी के लिए बोले ना आपने। हां तो लेट मी क्वेश्चन लिखने दो पहले। अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ऑफ इंप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट फोर्स की जगह पे मैं लिखता हूं लेट अस से सेकंड क्वेश्चन में सेकंड फोर्स एट बी। तो अभी भी उसने मुझे बोल दिया कि मेरा रिजल्टेंट मुझे बी पे चाहिए, तो तुम रिजल्टेंट का पेरिग्नॉस थ्योरम क्यों फाइंड कर रहे हो? उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि मुझे रिजल्टेंट बी पे ही चाहिए, तो तुम लोकेशन क्यों फाइंड करोगे? सर समझ में आ रहा है लॉजिक? सर तो मोमेंट एट बी फाइंड करना पड़ेगा ना, एमबी। हां तो मैं कब मना किया? हाँ। बताऊं ना। हां सर। ओके, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी।
देखो अभी मैंने क्वेश्चन जो चेंज किया था, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेकंड फोर्स बी, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी। चलो फटाफट मूवमेंट लो एट बी पे, एट बी पे -5 पहले तो into 5 न्यूटन का फोर्स -5 into -5 तो -5 into 2, ओके, प्लस 15 into 2 into 2 प्लस plus 20 20 into 4 4, कितना आ रहा है आंसर? 120 न्यूटन मीटर्स। 120 न्यूटन मीटर, दैट्स इट। अभी अपन क्या बनाएंगे आंसर? आंसर में हो जाएगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। हमारा रिजल्टेंट उसको कहां पर चाहिए था? बी पे चाहिए था, तो बी पे बना दो। B पे So this is point B, resultant of 50 Newton. But now the couple will be of how much? Only 120. 120 न्यूटन। That's it. This is सर the 100 न्यूटन मीटर आएगा ना वहाँ पे माइनस है। 80 प्लस 30, 110, 110 में 10 गया है, 80 10 में 10 गया, 100 बचेगा, जैसे 100, 100 आएगा। यस सर 100। कोई डाउट? नो सर और याद रखना, अगर फोर्स कपल सिस्टम बोला तो डोंट यूज वेरिग्नॉस थ्योरम। अगर वेरिग्नॉस थ्योरम आपने यूज कर दिया मतलब यू डोंट नो द कांसेप्ट एंड यू विल गेट 0 मार्क्स। वेरिग्नॉस बस तुम लोग खाली दिमाग में ये याद रखो, वेरिग्नॉस विल बी यूज्ड ओनली व्हेन द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट इज आस्क्ड। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया कि उसको पॉइंट ए पे चाहिए, बी पे चाहिए, सी पे चाहिए, तो वेरिग्नॉस नहीं लगेगा, बिकॉज़ उसने ऑलरेडी बता दिया कि उसको वहां चाहिए, तो वेरिग्नॉस नहीं लगेगा। जब नहीं मालूम है, फाइंड करना है, तो वेरिग्नॉस लगेगा। आप समझ में आ गया? यस सर। यस सर मैंने खास ये वाला क्वेश्चन करना है। वापस से बोलूंगा वही चीज, द टॉपिक वेरिग्नॉस सर थ्योरम। ये क्वेश्चन में तो गिवन है ना, हाँ, तो कहां लगा मेरी वेरिग्नॉस? नहीं लगा ना सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में कहां दिया है? सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू ए बोला है, एट ए नहीं बोला है। थोड़ा सा इंग्लिश भी है उसमें, इंग्लिश समझो, ठीक है? पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या पूछा, देखो अभी फिर से थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेंगे आज। अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए, एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसने बोल दिया एट ए चाहिए, ठीक है? अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, अ सिंगल रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए से कितना दूर पे, मतलब उसने लोकेशन पूछ लिया, ठीक है? ओके सर इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में वेरिग्नॉस लगाया, फर्स्ट पार्ट में वेरिग्नॉस नहीं लगाया। आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर यस सर। So this was the parallel force system part, जिसमें मैंने दोनों पॉइंट कवर कर लिया। Then third is the general force system. Third part is the general force system. एक ही क्वेश्चन था सर। हाँ, parallel force system में ज्यादा कुछ है नहीं ना सॉल्व करने के लिए, सब तो सिंपल ही है। ओके सर ओके, जनरल फोर्स सिस्टम। नाउ जनरल फोर्स सिस्टम में क्या क्या आएगा, ठीक है? अब थोड़ा सा रिवीजन। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम क्या क्या फाइंड करते थे? समेशन ऑफ एफएक्स, करेक्ट? यस उसके बाद समेशन ऑफ एफवाई, उसके बाद आर, आर थीटा। तो दिस वाज फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उसके बाद हमने स्टार्ट किया पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या आएगा? समेशन ऑफ एफएक्स और Summation of समेशन ऑफ एफवाई, समेशन ऑफ दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद आर निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा? डी, दैट्स इट। इसमें डीटा आएगा क्या? नो सर बिकॉज हमको मालूम है अगर हमारे सब फोर्सेस वर्टिकल है तो हमारा रिजल्टेंट भी वर्टिकल रहेगा, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट फोर्स और द लास्ट सिस्टम इज जनरल फोर्स सिस्टम। जनरल फोर्स सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, तो इसके तो सब कुछ करना है। तो समेशन ऑफ एफएक्स, समेशन ऑफ एफवाई फाइंड होगा, आर फाइंड होगा, थीटा डी। ठीक है? इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाद में क्वेश्चन में ये भी बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट कट्स द बेस या फाइंड द रिजल्टेंट कट्स द वर्टिकल, तो आपको एक्स और वाई भी फाइंड करना होगा इफ इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर नहीं पूछा है तो हमारा सम यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, वो ट्रायंगल बना के जो हम करते हैं। चलो, तो फॉर द जनरल फोर्स सिस्टम अगेन आई हैव रिपीटेड द सेम थिंग्स, सो आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन, जस्ट द मेन थिंग्स वर दिस व्हिच आई वांट टू कन्वे। क्या क्या आप लोग फाइंड करना चाहते हो, ठीक है? अरे डोंट फॉरगेट के ऊपर ही लिख दिया मैंने, ठीक है? तो उसको भी फॉरगेट मत करना जो डब्बे में, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द गिवन फिगर। बस हो गया, क्वेश्चन बन गया। फाइंड रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द गिवन फिगर, हो गया, क्वेश्चन बन गया अपना। चलो क्या करेंगे? अच्छा पहले तो ये बताओ, इज इट अ जनरल फोर्स सिस्टम? नो सर कॉन्करेंट इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है? तो ये मैंने गलत ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इट विल नॉट कम इनटू जनरल फोर्स सिस्टम। चलो ठीक है, जब आएगा तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोग को चाहिए समेशन ऑफ एफएक्स, समेशन ऑफ एफवाई, आर एंड थीटा। बट फॉर एफएक्स एंड एफवाई सबसे पहले क्या करेंगे? जो थीटा फोर्स को इंक्लाइन करने के लिए एंगल। अब यहाँ पर करेंगे यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है एंगल्स निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? सो दिस इज अ पेंटागन, दिख रहा है आपको पेंटागन है? यस सर। यस सर अब थोड़ा सा बचपन की यादों में जाओ एंड टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन का हर एंगल कितना रहता है? भूल गए? गूगल करना पड़ेगा सर यार। जी सर। अरे मेरा भाई, कितनी नहीं साइड है? लगे कितनी साइड है? 5 साइड है। 5 साइड। पांच। टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 तो 360 डिवाइड बाय 5 करते हैं ना, 72 तो yeah, that's the 72 degree. So each angle or each side of a pentagon is at 72 degrees. समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर अच्छा चलो, ओरल के लिए मस्त क्वेश्चन दे दी तुमने मेरे को दिमाग में। अब मैं पूछूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट आंसर मिल गया ना हम लोग को। नहीं ना, तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा, तो घुमा दूंगा ना क्वेश्चन, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है? द एंगल 72 इज दिस बेटर एंगल। रहेगा क्वेश्चन। अब वो पता नहीं, सोचूंगा। 72 डिग्रीज, दिस एंगल इज 72, दिमाग से। द एंगल ऑफ द साइड विद एक्स एक्सिस ऑन द आउटर साइड, नॉट इंटरनल, द एक्सटर्नल एंगल इज 72, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? अगर ये 72 है तो ये एंगल कितना होगा? रिमेनिंग -70 माइनस तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 108 108, ठीक है? 108। अच्छा, हमको ये एंगल की जरूरत है, ये वाला, यस और नो? यस सर सर। एक बार बताओ, क्या बताऊं? यही सर सम बताओ ना सर, एक बार समझा ही नहीं। क्वेश्चन ना,
हाँ देखो क्वेश्चन में हर फोर्स O से पास हो रहा है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, करेक्ट? वो नहीं सर, ये 72 आप ये बता रहा हूं ना मैं, पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 साइड, तो आप क्या करो, टोटल एंगल हमारा होता है 360 डिवाइड बाय 5 करो, सो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 72 डिग्री, ठीक है? तो हर साइड 72 डिग्री एंगल पे होगी। अब 72 कौन सा एंगल? इट इज आउटसाइड एंगल, नॉट इनसाइड एंगल, तो मैंने उसने आउटसाइड एंगल 72 बताया। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, ये अब अगर ये आउटसाइड 72 है तो इनसाइड कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72 108। अब थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पर मैं नीचे अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला सेम चीज हमने बोले ये एंगल इज 108 डिग्री, ओके, एंड वी आल्सो नो दैट बिकॉज़ इट इज अ पेंटागन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, करेक्ट? यस सर। OA विल बी इक्वल टू OB। अगर OA इक्वल टू OB है मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया वो? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स भी सेम रहेंगे। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, ओके? सो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द एंगल? 36 करेक्ट। देखो कैसा आया दिखाता हूँ, 180 माइनस 108 कितना बच रहा है? 72 बच रहा है ना, तो 72 बचेगा। 72 दो जगह पे डिवाइड होना है बिकॉज़ यहाँ पर का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है, तो डिवाइड बाय 2 इट विल बी 36। तो ये एंगल 36 है, एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल करें, यस एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज 36 डिग्री, तो मिल गया एंगल। यस सर, बरोबर। अब एंगल मिल गया, कौन सा एंगल मिल गया? फर्स्ट वाला एंगल मिल गया, सेकंड एंगल कैसे निकालोगे? सर वो साइड 72 डिग्री बना के निकाल लेंगे अरे ना। मेरा बाहर की भाई side। इतना लंबा क्यों जा हाँ रहे ये हो? भी जब मिल ऐसा गया, भी अगर बीच में एंगल 36 होता है तो ये एंगल भी कितना होगा? सर वो भी उतना ही 36 ही सेम होगा। आएगा बिकॉज़ ऑल द साइड्स आर सेम, तो एंगल भी सेम होगा, बराबर? यस सर। अच्छा ये एंगल कितना होगा? यस सर 36 रहेगा सर। 36। सभी फोर्स के बीच में कौन सा? 36 होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए दिखता सिंपल है, डरने का कभी कभी नहीं, डरने का नहीं, ठीक है? ये है 7 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये है हमारा 10 किलो न्यूटन का फोर्स जिसका एंगल हमने दे दिया कितना? 36 डिग्री, करेक्ट? यस सर। यस ये भी दूसरा वाला फोर्स है, ये वाला, जिसका एंगल हमको कितना मिला? 36 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हम लोग को इसमें इंटरेस्ट है क्या? नो सर। नहीं नहीं, सर। हमको इंटरेस्ट टाइम है व्हाट इज द टोटल एंगल विद रिस्पेक्ट टू टोटल एंगल 72 डिग्री। 72 डिग्री। बहुत से लोग एग्जाम में यही मिस्टेक करते, 36 लेके सॉल्व करते थे सब और फंस गए, ठीक है? नाउ लास्ट वाला जो है हमारा फोर्स वो ये वाला है, ये 108 हो जाएगा वो। 108 हो जाएगा, ठीक है? तो 3 किलो न्यूटन दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 36, बट मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को कैसे मतलब है? गिव मी द टोटल एंगल 108 डिग्री। 108 डिग्री बोलो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो, हाँ सर वैसा कर सकते हैं। वो 72 रहेगा। ठीक है? तो नाउ वी हैव गॉट ऑल द एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नाउ यू कैन अप्लाई fx fy, रिजॉल्व करके। समझ में आया? यस सर। यस सर। पहले तो उसने बोला हेक्सागोन है, तो मैं हेक्सागोन बना रहा हूँ, बनाऊं? हाँ बनाओ yes, है ना? बना दिया, बराबर बना रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बना हाँ सर right है। रहा? ये लो हेक्सागोन बना दिया। क्या बोल रहा है? 5 फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन respectively at one of the angular point of regular hexagon towards other 5 points as shown। मतलब क्या बोल रहा है? तो डायग्राम पॉइंट पे सभी फोर्सेस निकाल लेंगे और क्वेश्चन में एक्चुअली डायग्राम गिवन है, तो मैं बना देता हूँ डायग्राम आपके लिए, फिर हम लोग चेक करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और इस पॉइंट से दूसरी जो 5 पॉइंट्स है, मतलब पहली पॉइंट क्या है, यस और नो, पहले मेरे को बताओ। यस सर। अगर मैंने पॉइंट फिक्स किया तो मेरी पहली पॉइंट ये होगी, तो ये वाला फोर्स उसने बोला है 20 न्यूटन, समझ में आ रहा है? हाँ सर। दूसरा उसने क्या बोला, अगर मैं उसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करूं, मतलब ये वाले पॉइंट से, तो दिस इज माय अनदर फोर्स दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है? यस सर। ये थर्ड फोर्स या थर्ड पॉइंट मेरी ये है, इसको कनेक्ट करूंगा, सो दिस फोर्स इज नथिंग बट 40 न्यूटन। ये वाली पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, सो दिस इज 50 न्यूटन, और इस पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, मतलब यही लाइन से, तो दिस इज 60 न्यूटन। yes sir, हाँ सर। समझे। वैसे डायग्राम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ बोलो। सर ये भी कॉन्करेंट का ही है ना फिर? यस, दिस इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो आप जनरल का ले रही हो ना? हाँ ले रहा था, बट अभी क्वेश्चन ऐसा आ गया सामने, तो क्या करूं? ओके सर। गलती से मिस्टेक हो गया, जनरल फोर्स हेडिंग में आ गया और अंदर कॉन्करेंट का मान लिया, ठीक है? जनरल पे हम ये भी करते हैं जनरल का एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल का एक क्वेश्चन कर लेंगे बाद में। अच्छा, तो अब मुझे बताओ एंगल क्या लोगे? 60 डिग्री अभी क्या है मैंने टोटल 60 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 6 इट विल बी 60 डिग्री। 60। तो ये एंगल जो मेरा है वो कितना है, बोलो? 60 नहीं सर 60 नहीं डिग्री है सर। अभी मैंने हाँ यस बोल बाहर से है ना सर। नहीं रहेगा सर वो। दिस इज 60 डिग्री। 30 होगा इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, बाहर का एंगल 60। सर वो 30 डिग्री। हाँ चलो चेक करते हैं, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। 120। नाउ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 30 एंड दिस आल्सो एंगल विल कम आउट टू बी 30। सबको किसी को डाउट? नो No सर। sir, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 ये एंगल भी कितना होगा? 30 ये एंगल भी कितना होगा? 30। 30 बट हमको ये सब चिंदी चीजों की जरूरत है, अपने को क्या जरूरत है? total angle एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, With एंगल विद respect to रिस्पेक्ट टू x, एक्स। हाँ। सो आई विल मेक अ डायग्राम हियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला फोर्स तो यही रहेगा 20 Yes, sir. न्यूटन का, ठीक है? फिर उसके बाद ये फोर्स है हमारा दिस वन 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट? yes sir, उसके बाद वी हैव दिस फोर्स
ऑफ 40 न्यूटन और इसका एंगल कहाँ लेंगे, एक्स से लेंगे तो 60 डिग्री। उसके बाद ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टोटल एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस फोर्स विद अस। अब मुझे मालूम है कि ये 30 है, और ये 30 120 होगा, 120 और ये 30 होगा, कैसे 120? हाँ टोटल 120 अगर तुम लेफ्ट साइड से ले रहे हो तो, अगर मैं राइट साइड से ले लूं तो सिंपल हो जाएगा 60 डिग्री 60 हो जाएगा वो। बस। सो नाउ यू कैन इजीली रिजॉल्व, यस और नो? यस अगर मैं 120 लिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके सर। नाउ यू कैन रिजॉल्व इट एंड जस्ट अप्लाई एफएक्स एफवाई मूवमेंट, दैट्स इट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसको सपोर्ट रिएक्शन का सम समझते हैं। तुम लोग को भी आदत है, यूडीएल यूडीएल लिखा मतलब सपोर्ट रिएक्शन का सम। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। ये वो हिंज और रोलर और यूडीएल यूडीएल उससे सॉल्व नहीं होगा, इट इज नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टेंट, इसलिए मैंने लिया ये क्वेश्चन खास करके। दिसंबर 2018 6 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, कुछ भी सॉल्व करने से पहले? FBD बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो बना लेंगे, बहुत अच्छा समय मिल गया मेरे को, मैं उठा लिया। चल, सो सबसे पहले क्या बनाते हैं, लाइट applied forces and applied couples. So let us say this is my applied force of 50 kilonewton and there is one applied couple here of 50 kilonewton meter and there is applied force here of 100 kilonewton. और कुछ applied है? नो सर। नहीं, applied force हो गया, उसके बाद self weight है क्या कुछ? self weight नहीं सर वो जो 20 किलो न्यूटन एंड ऑल है उसको भी करेंगे ना, कैलकुलेट करके। लाइन से जा रहे हैं ना, अप्लाइड फोर्स हो गया, सेल्फ वेट, उसके बाद कन्वर्ट द लोडिंग्स इनटू रिएक्शंस। तो यहाँ पर अगर देखोगे बिटवीन सी एंड डी, इसका वेट नहीं दिया तो छोड़ दो, उसको सेल्फ वेट नहीं दिया तो छोड़ दो, ठीक है। नाउ बिटवीन सी टू डी व्हिच फोर्स इज एक्टिंग, व्हिच लोड इज एक्टिंग रादर? UDL. So for UDL we know that there is a force which will be coming exactly at the center, that means 2 meter, and the value will be intensity multiplied by length, that is 5 into 4 which is equal to 20. अरे 200 20 आएगा। हाँ 20 आएगा ना। 20 किलोमीटर, करेक्ट? किसी को डाउट है? यस नो सर। ओके, नाउ देयर इज आल्सो, रिपीट करूं, बिटवीन सी टू डी कौन सा लोडिंग है? UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का फोर्स कहां आता है? एग्जैक्टली सेंटर में आता है। तो सी और डी का सेंटर है 2 मीटर पे, मैंने मार्क कर दिया। और द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी व्हाट? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इंटेंसिटी इज 5, लेंथ इज 4, 5 into 4 is 20. ओके सर, यस सर। ओके, नाउ क्या, नाउ हाँ, ये लेफ्ट साइड में कौन सा लोडिंग दिख रहा है? A to B के बीच में ट्रेपेजॉइडल। UDL और UVL, इट इज अ मिक्सचर ऑफ UDL प्लस UVL। और अपना ब्रह्मास्त्र है अपने पास, जहां भी इंक्लाइन लाइन दिखी वहां क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो ये लो ट्रायंगल बन गया, दैट मींस द डाउनवर्ड पोर्शन इज UDL एंड अपवर्ड पोर्शन इज UVL, ठीक है। तो अब एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं एनालाइज कर रहा हूं UDL को। तो आई नो दैट बिकॉज़ दिस डिस्टेंस इज AB 2 मीटर, माय फोर्स विल एक्ट एक्जेक्टली एट द सेंटर, दैट इज 1 मीटर। किसी को डाउट यहां पर? नो सर। So this is 1 meter, this is 1 meter. And what will be the value? Intensity multiplied by length. 20. So 10 multiplied by 2, that is 20. 20 किलोन्यूटन। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हमको मालूम है, द फोर्स विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो वैल्यू ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस इज 2 हाइट, क्या लूं? 10 किलो न्यूटन। 10 लो सर। करेक्ट। एग्जाम में बहुत से लोग 20 लेके सॉल्व करते हैं, 20 नहीं आएगा। वी नीड ओनली द हाइट ऑफ ट्रायंगल, और यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ ट्रायंगल इन द टेक्निकल टर्म्स। तो टोटल 20 दिया, जिसमें से ये पार्ट 10 है, हमको साइड में दिया है लेफ्ट में 10, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। into 10. So 2 to get cancelled, answer will be 10 Newton का force, and where it will act? Upon 3 distance में। 1/3 from the right angle side. So it will be 2/3, कितना आता है? 0.66. 0.66 from right angle side, मतलब B से. So it will be here. The value is 10 kilonewton, and this distance is 0.66. किसी को डाउट? Okay. 0.66 B/3 ना, 2/3. 2/3 कितना आता है? 0.667 समथिंग। यस सर, वही आता है। डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम राइट वही आ एंगल रहा है साइड। सर। ठीक है। तो अगर ये 0.677 है, 667, तो ये A से कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 1.33। यस सर, यस सर। हो गया। तो नाउ वी आर रेडी। देखो अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ नीचे अलग से। अगर हमने बोले कि ये डिस्टेंस जो फोर्स है, इसका डिस्टेंस 0.66 B से है, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल। तो A से कितना हो जाएगा? A to B का डिस्टेंस 2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.33। तो ये तो टोटल 2 मिलेगा। हाँ वो सही है। नाउ एक चीज बाकी रह गई। क्या बाकी रह गया जो हम भूल गए? इंक्लाइन इंक्लाइन फोर्स को सीधा नहीं किया। There is one force which is inclined, we have to resolve it. तो रेजोल्यूशन क्या करते हैं? At the point of application. तो here I will resolve. Force is going towards left side, sorry, right side and down. तो एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, करेक्ट? यस सर। एंगल कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, ये क्या 60। हाँ, तो एंगल 60 लोगे, बोलो हाँ। नो Yes. सर। सर उसके मतलब से निकाल देंगे ना सर। जस्ट यहाँ पर देखो, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये कितना बचेगा? 30. सर, वो 30 डिग्री Angle of force is 30.
समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम में 60 लेके Yes, सॉल्व कर दोगे, बोलोगे 8 मार्क्स का मिलेगा, 0 मिलेगा। जस्ट हियर, यहाँ पर देखो फिर से क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने का। इंक्लाइंड फोर्स 100 किलो न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू डी। ये टोटल एंगल हमको दिया है 90, करेक्ट? टोटल। अब उसमें से क्या बोला है, यहाँ पर ये दिया हमको 60, तो अगर मैं इसका पैरेलल लाइन बनाऊं तो दिस एंगल इज 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। 30। That this angle is 30, so this will be 100 cos 30 and this will be 100 sin 30. Most important step, इसलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम लिया हूँ सॉल्व करने के लिए। किसी को डाउट है? हाँ बोलो। नो सर आप इसे समझाओ ना। ओके ठीक है, ये 30 वाला। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो मैं फिर से बताता हूँ इधर। ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया है इंक्लाइंड फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बार डी। ठीक है, मतलब ये फोर्स और ये बार के बीच में एंगल दिया हमको 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट? 90 डिग्री। नो सर। ठीक है, अब हमको उससे मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, हमेशा फोर्स का एंगल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये एक एक्सिस बना दी, ठीक है, फोर्स के साथ। सर समझा। अब ये एंगल 60, तो ये 60 अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये 30 होगा। 30। ठीक है, इसलिए Yes, sir. it will be 100 cos 30 and this will be 100 sin 30। बहुत अच्छा समय, 6 मार्क के लिए नहीं 8 मार्क के लिए आता है नॉर्मली, इसलिए 6 मार्क के लिए पूछा है। ओके, सब चीजें हो गई, अब क्या करेंगे? समेशन ऑफ fx सॉल्व हो गया ना, उसके बाद क्या करोगे? समेशन सिंपल। सो यहाँ पर आसान होगी, तो व्हाट यू डू इज फाइंड fx fy r and थीटा। तो इतना करके छोड़ो फटाफट, fx fy r and थीटा। So am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, so let us start with the session 3 in which we will cover this topic, that is support reactions. So for support reaction I will not go into much details in this because you already know what are the steps. That is show all the applied force in the couples, then convert all the loadings into reactions, UDL, UVL, etc. Then convert all the supports into reactions which are hinge support, roller support and fixed support. तो अगर hinge support रहेगा तो 2 रिएक्शन, horizontal vertical, roller रहेगा तो 1 रिएक्शन perpendicular to the motion, and if it is fixed support 3 reactions, horizontal, vertical and movement. That's it. Find support reaction at A and B for the beam loaded in figure shown in figure for 8 marks in May 2019. Okay, so what I will do is I will just make the free body diagram. Okay, so the same diagram sir. here. हाँ बोलो। सर इसकी पीडीएफ सेंड करने वाला हूं हाँ कर दूंगा, सॉल्यूशन जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसकी कर दूंगा। सो लाइट है ना हाँ कर दूंगा, वाईफाई भी चला देंगे ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद अप्लाइड फोर्सेस। तो यहाँ पर ये दिया है अप्लाइड फोर्स, सो दिस इज 20 किलो न्यूटन, showing applied force as it is. Then here it is a 30 kilo newton force. Then there is an applied couple here of 15 kilo newton meter. बस इतना ही, और कुछ है अप्लाइड में? नहीं सर। अप्लाइड में नहीं। उसके बाद रिएक्शन और सॉरी कन्वर्जन ऑफ लोडिंग्स। यहाँ पर लोडिंग कौन सी है तुम्हारी? UDL। UDL। लेट अस से आई एम नेमिंग इट A B। लेट अस से मैं इसको नाम देता हूँ C, इसको नाम दे देता हूँ D, इसका नाम दे देता हूँ E। ओके, सो दिस इज A C D, एक मिनट, E एंड B। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ सर। नहीं सर, आ रही है बराबर। नहीं सर बराबर। एक मिनट, यस सर बराबर है। एक मिनट मैं और नजदीक कर लेता हूँ माइक। स्लो आ रही है। ओके, अभी बराबर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा UDL है। सो फॉर UDL व्हाट इज द कन्वर्जन? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो टोटल लेंथ इज 5 मीटर और इंटेंसिटी भी दिया है 5। सो 5 into 5 is 25 और एक्ट कहाँ पर करेगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर। सो दिस इज माय फोर्स ऑफ 25 किलो न्यूटन। किसी को डाउट? No, नो sir. नो सर। सो अप्लाइड फोर्स हो गया, रिएक्शन फ्रॉम द लोडिंग्स हो गया, उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट्स। तो एट पॉइंट ए व्हिच काइंड ऑफ सपोर्ट यू आर सीइंग? Hinge support। So for hinge support, you replace it by 2 reactions. Let us say Two VA reactions। and let us say HA. HA. Now Horizontal the directions are not fixed. You can show any direction HA and V. No problem. Okay. Important point is here, for which I have taken this problem. At point B, there is again a support. Can you see the support at point A? Yes. But it is a Yes, point sir. contact. It is a point Point. contact. Yes. And we know that. What we know, reactions are always perpendicular. Correct? यस सर So if I make Yes, a sir. diagram here, I know that the reaction which I will make will always be perpendicular to this point B. Correct? Yes sir। अब ये एंगल तुमको दिया है 30, अगर ये एंगल 30 दिया है, ये 90 है, so what will be this angle? 60 degree। डिग्री So I will make this force here and I will tell that the angle of this force is 60 degrees. बहुत 60 सारे degree। उसको 30 देके सॉल्व कर देते हैं। Okay, that's why I have taken this problem. And once it is 60, I will solve the force. आपने किए थे ना, बहुत सारे सम तो किए इसमें के। देखो रिएक्शन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। Yes or no? From surface to body Yes, यस sir. सर। and it will be perpendicular to surface. तो ये 90 है, ये रिएक्शन 90 है यहाँ पर। तो अगर ये 90 है, ये 30 दिया हुआ है, तो ये बचेगा कितना? 60। 60, हाँ हाँ। So this will be RB cos 60 and this will be RB sin 60. बस काम खत्म हो गया। Now what is the next step? Apply fx, fy and moment. So I will start, 3 लाइन का सम होता है ये, सपोर्ट रिएक्शन का सम सिर्फ 3 लाइन के होते हैं। fx 3 लाइन 8 मार्क्स। Add all the forces in x direction. तो क्या क्या है? सर इसमें समेशन ऑफ fx 0 है ना? एंड cos Sir, करेक्ट। समेशन ऑफ fx 0 है तो इक्विलिब्रियम में होगा। प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम, कहीं पर भी रिजल्टेंट वर्ड यूज नहीं है। So fx equal to 0. एंड Summation cos of 60 fx equal to 0, so I will get HA minus RB cos 60 is equal to 0. कुछ आंसर नहीं मिलेगा, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो।
जहां से आंसर नहीं मिल रहा इक्वेशन बना के छोड़ देना, प्रोसीजर चेंज मत करना। ओके, सेकंड स्टेप इज समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। fy इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा, va -20 -30 -25 प्लस rb sin 60 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, sir. I will Yes, get sir. va plus rb sin 60 is equal to some number, क्या आएगा, 30 40 50 60 75 75. 75। Yes, That sir. is equation number 2। And the third point is take moment about any point on the force। तो कौन से पॉइंट पे लोगे? पॉइंट ए ले लो। पॉइंट ए point ले A, लो, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी पॉइंट है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट ए से ले रहे हैं तो एच ए और वी ए तो 0 हो गया। Yes, sir. नाउ दिस इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी Minus. -20 डिस्टेंस into 3, ये सी तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, ये 2 मीटर है। ओके, देन अगेन इट विल बी -30 into 5, करेक्ट? 5 Yes, then sir. -25 into 3 plus 2 5 7.5. 7.5। then there is also a couple here, anti-clockwise couple, so plus 15। Yes, 15. ओके, बाद में अब थोड़ा सा वापस से दिमाग लगाओ, रेजोल्यूशन शुड बी डन वेयर, रेजोल्यूशन शुड बी डन वेयर At the At the point of एट द पॉइंट ऑफ application. एप्लीकेशन, मतलब वो एग्जैक्ट जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये और ये। Yes, sir. RB now- cos 60 0 हो जाएगा। RB cos 60 is passing through point A only, so movement will be 0। now this is force making a anti-clockwise movement, so it will be plus RB sin 60, डिस्टेंस कितना होगा? 10. वर्टिकल फोर्स 10 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 plus 2 5 plus 5 10। और कुछ है? No, sir. So this would be equal to 0। now only unknown in this equation is RB, so just solve and give me the answer for RB, that's it। वरना 3 लाइन का सम होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, only 3 lines। 44.1 44.1 44.16. ओके, 44.16 या 44.1, ओके, करेक्ट आंसर। अब 16। RB मिल गया, हाँ 160 के ना 44 पॉइंट जो आ रहा है वो लिखो। RB, now put this value of RB here also and put this value of RB here also, so we will get answer for HA from here and you will get answer for BA from here। HA 22.08. HA 22.08 and what about VA? 30.2। so we have found out answer for HA, we have found out answer for BA 36.75 आ रहा है and we have found out answer for RB। क्या किसका आंसर? VA का सर। BA का मुझे नहीं पता, तुम लोग चेक करो, मेरे पास आंसर नहीं है, रैंडम क्वेश्चन लिया। 36.75। बाकी हाँ लोग सर, वो 36.2 था। 36.75 है VA का। okay, 36.75 okay, 36.75। so is the problem complete? नो सर, No, sir. Why not? What is the result? Sir, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और Correct। डायरेक्शन मैग्नेट। क्वेश्चन में Point देखो, A ना सर। फाइंड सपोर्ट एट ए एंड बी, सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी, तो बी पे अपने क्या था, आरबी था, बराबर? तो आरबी का आंसर तो ओके हो गया, करेक्ट। बट एट ए अपना एच ए और बी है, उसने हमको ये नहीं बोला कि फाइंड रिजल्ट हॉरिजॉन्टल एट ए एंड वर्टिकल एट ए, उसने हमको क्या बोला, रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए। सो वी राइट डाउन आर ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, सो इट विल बी 22.08 स्क्वायर प्लस 36.75 स्क्वायर। सो व्हाट विल बी आर ए? we need the resultant reaction at point Sir, A। 42.88 किलोमीटर। Okay, 42.88 kilonewton, and because this force is a vector quantity, magnitude and direction both are required, so we also need to find out theta। so theta will be वही बचपन वाले फॉर्मूले, tan inverse of fy by fx, मतलब 36.75 divided by 22.08। सर इसमें 59.0 59.0 59.0 59 सर। हाँ तो 59 ही बोला, 59 डिग्रीज, करेक्ट। now it's the यस सर। problem complete। ओके, so again you can see 8 marks problem, very simple। सपोर्ट रिएक्शन का सम तो कभी मत छोड़ना एग्जाम में, बाकी सब कुछ छोड़, मतलब कुछ भी मत छोड़ना वैसे तो, बट सपोर्ट रिएक्शन तो मत छोड़ना, ठीक है। so let us go to the next question and this is this one। again this was asked in December 2017 for 8 marks। okay, let us quickly go बी पॉइंट पे नहीं निकालेंगे। नहीं ना, बी पे देखो क्या है, बी पे एक ही रिएक्शन है ना, आरबी। आरबी दो है, अच्छा एक नहीं ना, आरबी है ना, ये आरबी cos 60 तो कंपोनेंट्स है उसके, केले को सीधा जो किए थे वो है, बट है तो एक ही ना। अब यहाँ पर अगेन सपोर्ट रिएक्शन बोल दिया है, तो आई विल मेक अ 3 बॉडी डायग्राम। सो दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ पॉइंट बी, यहाँ पर दे देता हूँ लेटर से, नहीं बी नहीं दे सकता, यहाँ सी दे देता हूँ, यहाँ पर डी, ये पॉइंट उसने बोला है बी, और ये यहाँ पर दे दिया उसने 80 किलोमीटर का फोर्स। लेटर से इसका मैं नाम देता हूँ, दे सकता हूँ ना नाम? यस। हाँ, मेरी मर्जी होगा, पूरी मर्जी से चलाऊंगा ना मैकेनिक्स में। ओके, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द अप्लाइड फोर्सेस, तो मैंने बना दिया, 80 किलोमीटर अप्लाइड फोर्स का मैंने बना दिया। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कन्वर्ट द लोडिंग्स इनटू रिएक्शंस। सो व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग यू कैन सी? UVL। नो, इट इज अ ट्रापेजॉइडल लोडिंग, ठीक है। तो इसको मैं सर ट्रेपेजॉइडल लोडिंग है सर। हाँ, तो इसमें नीचे UDL है, ऊपर UBL है। सो फॉर UDL, फॉर दिस UDL वी नो दैट व्हाट वी नो, द फोर्स विल बी एक्जेक्टली एट द सेंटर and the value of force will be intensity multiplied by length, 20 into so 20 into 6, that will be 120 kilonewton। okay, now if I consider UVL, that means this triangle, तो मुझे पहले बताओ ट्राइंगल का हाइट क्या है, बोलो 50, 30। ट्राइंगल हाइट इज 30, टोटल हाइट 50 दिया है, टोटल हाइट 50 दिया है, मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, 30, हाइट मतलब इंटेंसिटी 30। so we know that there will be a force of value half into base into height, so half
into base is 6, height is 30. Okay, and it will be acting where? It will be acting where? At a distance of At a distance of b by 3 from right angle side. ठीक है, तो Yes, 6 sir. by 3, 6 by 3 gives you 2. पॉइंट डी 2 से कहाँ से? पॉइंट डी से 2 मीटर. तो दिस इज 2. अगर ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 3 मीटर. करेक्ट? 4 हो जाएगा ना? 4 meters. ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है. ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है. कुछ डाउट है किसी को? नो सर Reactions are converted. Next is convert all the supports into reactions. सर हाँ बोलो. सर बी टू ई डिस्टेंस 5 होगा ना? B2E, E कहाँ पर है? B2E 5 क्यों होगा? नो सर सही है. B2E तो क्वेश्चन में दिया ना 3. यस सर. हाँ, अभी पॉइंट ए पे कौन सा सपोर्ट दिख रहा है? In support. सपोर्ट कितने सपोर्ट? 2 और एक vertical और एक horizontal reaction. वर्टिकल एट ए, हॉरिजॉन्टल एट ए. ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट बी पे. मस्त वाला रोलर है इधर. रोलर के कितने रिएक्शन? सर एक ही रिएक्शन Again same thing. Roller is like this. We Yes, know sir. that reactions are always what? सरफेस परपेंडिकुलर Perpendicular and सरफेस from surface to body. perpendicular surface. मतलब Yes, वो sir. यहाँ पर ऐसा है, ऐसा रिएक्शन होगा और द एंगल बिटवीन देम विल बी 90. करेक्ट? 90 degree. Yes, sir. क्या हुआ? हिंज है ना वो? हिंज नहीं बेटा, ये देखना सर्कल सर्कल दिख रहा है ना नीचे, मतलब रोलर है. हाँ टायर बने हुए मतलब रोलर. ओके, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, ये हमको मालूम है 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 60 degree. 60. That means I will make a resolution of, I will show that this angle is 60 degrees. किसी को डाउट है? अच्छा, अब ये टेढ़ा होता है, टेढ़े बंदे को सीधा कर दो. So this will be RB cos 60 and this will be RB sin 60. किसी को डाउट? फाइन. नो सर. बस हो गया, काम खत्म. ये तो मेन पार्ट था. उसके बाद जस्ट एफएक्स एफर्ट मूवमेंट. हाँ बोलो. सर ये आरबीआई से नीचे बनाया तो भी चलेगा ना? नीचे से ऊपर? यहाँ पर ना ऐसे हाँ सर. बना ना, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिविटी पता है ना अपने को? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिविटी क्या होता है? यू कैन ट्रांसफर द फोर्स एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो कर लो. ठीक है, समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू 0. क्या क्या आएगा? माइनस नहीं, प्लस एच ए. माइनस. हाँ, राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा ना. एच ए माइनस आरबी RB cos 60 और कुछ है नहीं है, इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. समेशन ऑफ एफवाई शुड बी 0. ऐड ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. तो बी ए minus 120 minus 90 minus 80 plus RB sin 60 is equal to 0. So what I will get is VA plus RB sin 60 is equal to what? 290. 290. Correct. 290. Let this be equation number 2. Third equation is take movement of all forces. So which point I should take? A ले लो. Summation of movement about A should be 0. Movement at A. So this point. My promise. Whatever distance I will take from that particular point only, and I will take the perpendicular distance. चलो आ जाओ, लाइन से चलते जाओ. चलो रे, रास्ते में किससे मिलोगे? -120 हाँ, मिल गया. minus 120 So minus 120 into distance is into 5. 5 given over 2 or 3, 5. Okay, then minus 90 into -90. distance will be how much? 5 plus 2 5 plus 4 अरे 2 plus सीधा 6 सीधा है ना? 7 7 7 6 meters. 4 plus 6 2 meters 6. आएगा. 4 plus 2 Yes, 6 6. उसके बाद 8 आया. इसका 8 आएगा. 8 ये कैसे? समझा नहीं वाला डिस्टेंस 8 कैसे? ये वाला डिस्टेंस नहीं समझा डिस्टेंस समझाओ. ओके, डिस्टेंस समझा देता हूँ. हाँ ठीक है, देखो आपने बोले थे जो ये यूवीएल का फोर्स है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस 90 वाला फोर्स. मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ. हाँ, ये 90 वाला फोर्स ये कहाँ पर है? डी पॉइंट से 2 मीटर पे बराबर. यस सर अगर डी से 2 पे है, अगर डी से 2 पे तो सी से काम कितने पे होगा? 4 पे 4 पे होगा. करेक्ट? मतलब सी से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है बराबर. और ए से अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना और ऐड करूंगा? 2. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 4 6. हाँ बरोबर सर. डाउट है कुछ? नो सर. ओके, नो सर नो तो मल्टीप्लाइड बाय 6. उसके बाद plus आरबी क्या हुआ? आरबी sin 60 डिस्टेंस नहीं समझा. 6 एक मिनट, उसको डाउट है शायद. डिस्टेंस नहीं समझा क्या? 6 कैसे आया? समझा सर. कोई तो कुछ पूछ रहा था. ठीक है, तो दिस इज 4 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2 + 4 6 बराबर है. उसके बाद आरबी cos 60 का मूवमेंट क्या आएगा? RB sin 60 sir cos 60 का क्या आएगा? प्लस आरबी सर इनटू 10. 0 है ना सर. इट इज पासिंग सर 0 आएगा. हाँ, तो मैं देख रहा था तुम लोग जाग रहे हो कि नहीं. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. RB sin 60 का लेगा ना. RB आरबी सर 60 इनटू 10. डिस्टेंस इज 6 + 2 8 + 2 10. करेक्ट? minus Then minus minus 18 to 13. 13. into 13 This should be equal to 0. So everything is known. Just find the RB की answer for value- RB. सर ये डिस्टेंस में ना बहुत सर RB equals to 251.7 डिस्टेंस हमेशा पॉइंट ए से लेना. हमेशा मतलब ये केस में क्योंकि हमने मूवमेंट ए बोला है, है ना मूवमेंट ए लेना. RB equals to 251.72. RB 250. Okay, 251.72. RB मिल गया. Okay, RB मिल गया. तो put RB value here and also put RB value here. You will get the answer for HA and you will get answer from here as VA. देखो Sir, 3 HA is 125.86 kilonewton. 120
5.86 5.86 and we had 72 kilonewtons. VA 72 किलोमीटर। तो HA मिल गया, VA मिल गया। क्वेश्चन में उस पे इंटरेस्टेड नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोर्ट रिएक्शन एट ए। सो आई विल राइट रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू रूट ऑफ HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। सो R इज कमिंग आउट टू बी 144.9. okay 144.9 145 बोल दो, आंसर इज सेम। ओके एंड नाउ थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ fy by fx, दैट मींस 72 डिवाइडेड बाय 125.86 29.77 degrees. 29.77 डिग्री। दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। कोई डाउट है क्या? सर एक डाउट है। हां बोलो, डाउट है तो पूछो। सर आरबी की वैल्यू मेरा आ रहा है 25172.47 आ रहा है। 251 आ रहा है। यस सर आ रहा है 25172। डेसिमल के बाद कुछ भी आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अगर 250 आ रहा होगा तो ओके। सर ये जो आपने लिखे है उसकी वैल्यू, उसके बाद मेरा डेसिमल आ रहा है 25172.47। नहीं मतलब तुमने कुछ दो जीरो का कुछ गड़बड़ किया। समझ गया तुमने क्या करे, तुमने डिवाइड बाय 10 नहीं करे। सर क्यों? नो डिवाइड बाय 10 शायद नहीं करोगे। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो, गेट द करेक्ट। 60 भी डिवाइड नहीं किए होंगे सर उन्होंने। हां कुछ तो एक डिवीजन करना भूल गए। और फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस व्हाट आई रिकमेंड इज यूज शिफ्ट सॉल्व मेथड। शिफ्ट सॉल्व मेथड में करो, आरबी की जगह पे x डालो, शिफ्ट सॉल्व करो, आंसर फट से मिलेगा। तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कैलसी में शिफ्ट सॉल्व वाला मेथड यूज करो। यस सर राइट है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम, अभी भी हमने इक्विलिब्रियम का ही सम करे, बट इक्विलिब्रियम में ये वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन सिलेंडर ओवर वन अंदर, जो हमने कल ही किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। जस्ट आई हैव गिवन यू द हिंट। लेमिस थ्योरम कब अप्लाई होता है? अगेन वेरी गुड ओरल क्वेश्चन। कंडीशंस टू अप्लाई लेमिस थ्योरम। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी 3 फोर्सेस। सेकंड विल बी इट शुड बी साइमल्टेनियसली एक्टिंग एट अ पॉइंट। They should be equilibrium. This is the fourth condition. Equilibrium. They should be coplanar and they should be either towards or away from the point. If these conditions are satisfied, then only you can apply Lemis theorem. And what is Lemis theorem? The ratio of force to the sine of angle between other two forces is constant. So if you see the diagram and you can relate the formula. Force F1. ये अगर एंगल भी 180 से नीचे होना चाहिए। हेलो हाँ बोलो, एंगल क्या? 180 से लेते होना चाहिए सर। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। Okay, for example, I can show you. Let us say this is the force. एक force ये है, एक फोर्स लेट अस से ये है और तीसरा फोर्स ये है। सो कैन यू अप्लाई लेमिस थ्योरम? Yes, sir. But if you see, if I consider this force, let us say this is F1, F2, F3. If I apply Lemis theorem, so I will write F1 divided by, अगर फोर्स ये ले रहा हूँ तो एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस, तो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 180। बराबर ना? यस सर। तो वो कंडीशन है ही नहीं कि 180 से लेस होना चाहिए। सो लेट अस मूव। हां मस्त वाला सम आ गया। ये सम तुमने किया, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. दिसंबर 2020 5 मार्क्स। बट ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया हूं वो बताने के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया था। ठीक है चलो पढ़ते हैं। अ हेवी रोलर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर में आ गया, एंड वेइंग 2000 न्यूटन, वेट सेल्फ वेट दिया है, इज पुल्ड टू द राइट बाय द पुलिंग फोर्स T एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है वहां दिया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अ 6 सेंटीमीटर स्टेप, अ स्टेप ऑफ 6 सेंटीमीटर स्टॉप्स द रोलिंग मोशन ऑफ द रोलर। फाइंड मैग्नीट्यूड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ द रोलर। जस्ट स्टार्ट द मोशन मतलब कौन सा फोर्स फाइंड आउट करोगे? यस सर। जस्ट स्टार्ट मतलब which force? जस्ट स्टार्ट मतलब द मिनिमम फोर्स। Are you getting it? यस Yes, sir. मिनिमम फोर्स, इतना फोर्स पे वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। एंड फॉर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द रिएक्शंस? 90 degree. 90 degree. The reaction from surface and the applied force should be always 90 degree if we want the minimum force. ये कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था। जो अपन पिछला सम किए थे उसमें तुमको यहाँ दे दिया था 90, इसमें दिया नहीं, इसमें तुमको अज्यूम करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ। ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रॉब्लम व्हाट वी डू? Free body diagram. यस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। SPD. ये मैंने बॉडी बना दिया, ये मेरी बॉडी है। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज दिस वन। ठीक करेक्ट। यस सर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेल्फ वेट। सेल्फ वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, सो दिस इज 90 डिग्री वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द वैल्यू इज 2000 न्यूटन। व्हाट कैन यू टेल अबाउट कॉन्टैक्ट सरफेसेस? कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है? बोलो दो। एक ठीक है। हाँ जिसने ये सॉल्व नहीं किया होगा वो दो बोलेगा। ठीक है क्वेश्चन समझो, तो बाकी के डिवीजन के लोग थोड़ा सा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फोर्स T टू स्टार्ट द मोशन। अब जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा इसका ग्राउंड पे कांटेक्ट रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। तो नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर वो कांटेक्ट रिएक्शन नहीं आएगा। बट देयर विल बी कांटेक्ट रिएक्शन हियर एट दिस पॉइंट A एंड वी नो दैट द कॉर्नर एक्सर्ट्स रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। करेक्ट? Yes, द कॉर्नर एक्सर्ट्स रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो मेरा ये जो रिएक्शन है वो ऐसा है। अरे ठीक है सो आई विल राइट हियर RA। किसी को डाउट? No. Now, क्या रिपीट करूं? कौन सा पार्ट रिपीट करूं बता? यही सर। देखो ना, वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में ये अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है T, क्वेश्चन में दिया है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ दिया है। ठीक है वो बनाया। सेल्फ वेट हमको मालूम है, इट इज परफेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैंने वो बना दिया। उसके बाद रिएक्शन एट कांटेक्ट सरफेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर टू कांटेक्ट पॉइंट्स, एक ये है और एक ये है। करेक्ट? फिलहाल के लिए दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे अभी जस्ट क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स T
टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ द रोलर। तो जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो ये कॉन्टैक्ट जमीन पे रहेगा क्या उसके साथ? नहीं सर। नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे पी घूमना मतलब ये सिलेंडर घूमना चालू हो जाएगा वो पॉइंट पे, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगा। There will be only one reaction at point A, and because it is a point contact, we know that the reaction are always from surface to body. This from surface to body in the radial direction. So that's why I have made it like this. ये मैंने यहाँ पर बना दिया। And one more thing we know that the angle, because it is a minimum pull, the angle between the applied force and the reaction will always be 90. 90 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये 30 डिग्रीज है। हमको मालूम है, क्या मालूम है? अगर ये 30 है, अगर ये 30 तो ये कितना होगा? 60। तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 90 रहेगा। टोटल एंगल 180 होता है। ऑल द एंगल्स आर नोट, कैन यू नॉट अप्लाई लेविस थ्योरम? एक लाइन का आंसर। यस सर। Yes, sir. लगा दे, T डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्या आएगा? एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस 90 प्लस 150 150 इज इक्वल टू 150 आएगा ना? 9 6 15 होता है रे। 2000 डिवाइडेड बाय एंगल 90 sin 90 इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इन दोनों के बीच का एंगल, तो 90 प्लस 120। बस अब सिंपल ये दो को ले लो पहले, and you will get answer for RA. Then if you take this and this, you will get answer for T. One liner answer. Sir, T equals to 1000. Yes, sir. Equal to 1000. Okay. What about RA? RA equals to 1732.05 newtons. 1732.05. Correct? Yes, sir. Okay. So it's a very simple problem, but exam में लोग क्या करते हैं, उसका सपोर्ट रिएक्शन भी बता देते हैं, जो बॉल पे जमीन पे है। एक बार वो बना दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, जीरो देके आगे बढ़ जाए। ठीक है? So let us go to the next problem और क्वेश्चन देख के डर जाओ। ये लो। क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। हाँ, क्वेश्चन नहीं आया। आ गया? आया सर। आया सर। हाँ, तो डरो नहीं सर। नहीं, डरो क्यों? नहीं डरने का। अच्छा, खतरनाक डायग्राम दिया मेरे को, समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। ये सर डर कुछ नहीं। जाएगा। A lever AB is hinged at point T, ठीक है, दिख रहा है, काय को बता रहा है भाई, दिख रहा है, and attached to cable at A, ओके, वो भी दिख रहा है। If the lever is subjected at B to a 400 Newton horizontal force, वो भी दिख रहा है। Determine tension in cable AD, reaction at point C, ओके, डन। सबसे पहले तो मेरे को बताओ बॉडी कौन सी है अपनी? सर AB है बॉडी। AB क्वेश्चन में दे दिया, देखो, a lever AB, so I will draw a free body diagram for AB। किसी को डाउट? AB। No, sir. नो सर। तो चलो यहाँ पर मैं बना दिया that this is A, this is B। सबसे पहले क्या बना दिया अपन? सेल्फ वेट। इसके पहले क्या बनाता रे? डायरेक्ट कूदेगा self weight। अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कुछ है? बोलो नहीं। मार खाता क्या रे? 400 न्यूटन है। नहीं, हाँ अच्छा, वो तो है, बराबर, वो भी है। तो ये 400 न्यूटन, और क्या है? सर टेंशन है, टेंशन AD अपन ने बोले थे केबल को क्या लेना है? केबल को एज अप्लाइड फोर्स लेना है, करेक्ट? एंड इट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। यस, इट इज अलोंग द रोप एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, सो दिस इज टेंशन T, और उसको मैं नाम देता हूँ TAD बिकॉज़ इट इज अलोंग AD। वो तो सपोर्टिंग रिएक्शंस में आएगा ना, केबल वाला। काय को अपन मतलब सपोर्टिंग में पढ़े थे ना। नहीं पढ़े थे कहीं भी, बट कहीं भी अप्लाई तो हो सकता है ना। मैंने वो टॉपिक को पढ़ाया था, बट कहीं तो यूज तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड फोर्स हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? सेल्फ वेट। सेल्फ वेट क्वेश्चन में दिया है कुछ वेट? No, sir. छोड़ दो, भगा दो उसको, नहीं दिया है। उसके बाद क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन फ्रॉम पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी पे क्या है? हिंज है। सपोर्ट तो हिंज का रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सो देयर विल बी टू रिएक्शंस, लेट अस से VA एंड लेट अस से HA। बोलो रॉन्ग है, बोलो ना रॉन्ग है। आएगा सर BCHC। अरे हाँ रे बाबा, ले VCHC। अब बोलो रॉन्ग है। सर सही है। सही है ना? डायरेक्शन में किसी को डाउट है क्या? मैंने नीचे बनाया, ऊपर बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तुम्हारी मर्जी है, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ बनाओ। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाया आपने, बट वो हाँ, तो तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों पॉजिटिव बनाओ, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ तुम्हारे को, बनाओ। इट इज अप टू यू, wherever you want to make, you make it। ओके। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? नो सर। क्या पॉइंट A बचा? का बचा है। डी भी बचा। अरे मेरा भाई, बॉडी अंडर कंसीडरेशन क्या है? बॉडी अंडर कंसीडरेशन क्या है? ए बी, तो डी का आएगा पिक्चर में। दूसरी मूवी का हीरो यहाँ क्यों लेके आ रहा है? हम लोग अभी एनालाइज क्या कर रहे हैं? बॉडी ए बी, दैट्स इट। ए बी पे डी पॉइंट है क्या? नो नो सर। सर। नहीं है। ए है, सी है और बी है। एग्जाम में लोग वहीं पर कंफ्यूज होते हैं, और उसने ये सब डी दे दिया, डिस्टेंस, उसमें पागल हो जाते लोग, बोले हाँ कुछ तो यूज होगा, चलो बना देते। अरे काय को बनाएंगे भाई? ए टू बी बोला तो ए टू बी लेना, सिर्फ डी को क्यों उंगली कर रहा है बीच में? समझ में आ रहा है? यस सर, समझा। यस सर समझा। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्या जाएंगे आगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, यस सर। बन गया, बन गया, बन गया, हाँ बन गया। अब क्या करते हैं? रिजोल्यूशन। हाँ, टेढ़े को सीधा करना पड़ेगा ना। टेढ़े को सीधा करते हैं। हाँ, टेढ़े को सीधा करने से पहले अपन आगे बढ़ते नहीं तो वो अपने को तकलीफ देगा बाद में। टेढ़े को सीधा करो। सो आई विल मेक अ रेजोल्यूशन हियर। एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया, मैं करेक्ट? बोलो नो।
राइट है सर। Yes, बराबर है right, सर, हाँ, correct right. है सर। अब मुझे चाहिए हाँ, एंगल, बना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए एंगल, मुझे चाहिए एंगल, एंगल एंगल एंगल। सर मिल जाएगा एंगल। 30 डिग्री होगा ये सर। डायरेक्ट सर, हाँ, कैसे लाया 30? वो उधर दिया है ना सर, इंच के बाजू में। सर कर वो लिया? 30 है। कर लिया झोल, कर लिया झोल। नहीं सर, सर हाँ, ऐसा देखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बनता है ना, उससे हाँ, निकाल सकते हैं यहाँ पर एक के देखो, पास से। इतना आसान नहीं है। देखो ये 30 है, ये बराबर, सी और इसके बीच का Yes, एंगल। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, हाँ, सर। corresponding एंगल। बट मेरे को उसको क्या करना है? Corresponding मेरे को उसका कोई काम है क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं नहीं उसका सर। काम है, मेरे को ये एंगल बता रहे पापा, ये 60 होगा सर। कहाँ से लाए? सर इंक्लाइन लाइन को ट्रायंगल कहाँ से बनाइए। लाए? 90 माइनस ट्रायंगल 30। बना लो 90 कहाँ से लाए? वो रिजल्ट अब यहाँ पर देखो, मेन डायग्राम में आ जाओ। मेन डायग्राम में अपने पास जब इंक्लाइन लाइन रहती है तो क्या करते हैं? ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। बोलो, यहाँ पर भी बना रहा हूँ मैं ट्रायंगल, ये लो बन गया, ट्रायंगल बन गया। यस सर। अब ये एंगल अगर 30 है, ये वाला, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 30 होगा। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला 60। 60। ठीक है, कौन सा एंगल? ये टोटल एंगल 60 है, ये वाला टोटल। अब 60 में से ये 30 है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा? तो 60 में से वो 30 कैसे? कौन सा? ये तो दिया ना, ये ऑल्टरनेट से निकाल लिया ना, ये 30 सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग से। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। तो सर 90 Total माइनस 30 90 60 हो जाएगा ना। हाँ, 60 किसका होगा? ये होगा ना टोटल। सर जो वो वाला एंगल है वो नहीं 60 सर, होगा। सर हम ये चाहिए। जो है ना, ये हाँ, 30 बोलो बोलो। सर वो 30 समझाओ, ब्लू कलर से जो लिखा है 30, ये वो 30 समझाओ। निकाले वो उसके समझा, बाद वाला 30 कैसे उसके होगा? बाद में कैसे निकाले 60? उसके बाजू वाला 30 कैसे होगा? ठीक है, चलो दूसरे तरीके से जाते हैं। ठीक है, अपने को कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं सी और ए, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 60 आपकी वॉइस चली गई। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। हाँ बोलो। ये 60 में कंफ्यूज है ना, एक जो आ रहा है 60। हाँ, यस यस। तो सर वो ए को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिसॉल्व करेंगे, तो ए का वो 30 आया ना, और वो टोटल एंगल होगा तो 90 होगा। तो 90 माइनस 30 60 बचा। तो 60 बचा ना, मेरे को वो वही एंगल तो बोल नहीं रहे चाहिए ना, ना, मुझे वो 60 एंगल नहीं चाहिए। तो ये लोग बोल रहे वो कैसे आया वो ना। हाँ देखो, अब लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, आईसीआर जो अपने पढ़े उसका यूज होगा इधर। ये देखो कैसे, जस्ट कंसीडर दिस ट्रायंगल, मैं जो ये ब्लू में बना रहा हूँ, ए सी डी। देखो दिमाग, थोड़ा दिमाग लगा दिया मैंने। ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अपने को ये एंगल चाहिए बीच वाला फिलहाल के लिए। अगर ये मिल गया तो मैं दूसरा कर सकता हूँ, बराबर। यस Yes, सर। sir. अब देखो कैसे होगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करो ए सी डी। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना होगा? 120। 180, हाँ, 120. 120 हो जाएगा वो। ठीक है, 120 हो जाएगा। अभी तुमको एक एंगल मालूम है और ये हाइट भी मालूम है। ये हाइट दिया तुमको 200, ये अगर 200 तो ये भी 200 है, ये भी दिया है 200। मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया वो? आइसोसेलेस हो आइसोसेलेस जाएगा। ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज़ इट इज आइसोसेलेस। यस सर। अब Yes, हाँ sir. सर। टोटल सम होता है 180। टोटल सम होता है 180, 45 120 है तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब ये 30 होगा, ये 30 होगा। हाँ, ये 30 हो जाएगा, बराबर. यस Yes, सर। sir. अब ये 30 कौन सा मिला हमको? द एंगल ये वाला, ये वाला बीच वाला एंगल मिला 30, बराबर। Yes, हमको sir. बीच वाले एंगल से मतलब है क्या? नहीं, Nice, No, sir. sir. अपने को किससे मतलब है? ये टोटल एंगल से। टोटल एंगल कितना हो गया? 60। 60 ना। तो दिस सर विल हम बी, वही तो पूछ रहे थे। हाँ। जैसे ए मतलब एक्स एक्सिस से लेना जरूरी तो है ना, वाई एक्सिस से डायरेक्ट 60 पहले से हमें पता ही था। नहीं, तो वैसे वैसे भी 30 ले आएगा सकते ना, हैं ना। वाई से 30 आएगा, 60 कैसे आएगा? हाँ 30। हाँ 30 ले सकते हो, बट मैंने अभी प्रूफ कर, पहले हम अंदाजा मार रहे थे कि 30 होगा, अब मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि 30 है। ओके सर समझे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. बस तो अभी बचपन वाले फॉर्मूले लगाओ, समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू 0, ऐड ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। क्या क्या आएगा? टीएडी cos 60 प्लस एचसी माइनस 400 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? टीएडी cos 60 प्लस एचसी इज इक्वल टू 400 मिलेगा ना, Yes. यस सर। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आएगा समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, ऐड ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। कहां गए? Minus Yes, T. Yes, sir. माइनस टीएडी sin 60 Sin 30. माइनस वीसी, माइनस वीसी। बस और क्या है? नहीं सर, सही है ना? प्लस वीसी है ना सर? काय को नीचे जा रहा तो प्लस Minus से नीचे होगा ना? सर नीचे जा नीचे रहा है। आएगा। अरे तुम ऊपर बना रहे हो तो प्लस वीसी लिखो, मैंने नीचे बनाया तो माइनस Okay, वीसी लिखूंगा। ओके सर, मैं ऊपर बना देता हाँ, इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. तीसरा इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ मूवमेंट। कौन सी पॉइंट पे लूं? मोमेंट सर एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए लो, काफी सिंपल हो जाएगा। C पे. सी पे लोगे ना, डिस्टेंस लेने में वाट लगेगी। नहीं ले सकते हो यार, सी पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। C पे लो, direct मिलेगा ना distance. ए पे ले सर। अगर ए ए पे लो, लेंगे सी पे लो, कुछ फर्क हाँ, नहीं A पे पड़ेगा। लो sir, A पे. ए पे लूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या करेगा बताता हूँ। ए पे लूंगा ना तो एचसी और वीसी दोनों का मूवमेंट आएगा। ठीक है, मतलब फिर से एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व तो हो जाएगा बट इक्वेशन बनेगा। उससे बेटर अगर मैं मूवमेंट एट सी पे लेता हूँ, मूवमेंट एट सी पे लेता हूँ तो एचसी वीसी दोनों 0 हो जाएगा, मुझे टीएडी का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, so that's the Yes, logic sir. I'm using for movement at C. But if you want, you can also take movement about A. सेम आंसर आएगा। ठीक है, मूवमेंट एट सी, मूवमेंट एट सी लेंगे, मूवमेंट एट सी लेंगे, ये वाले पॉइंट से मूवमेंट लेना है, ये वाली पॉइंट से। चलो स्टार्ट करो। एच सी वीसी का तो 0 हो जाएगा,
Yes, sir. TAD cos 60 कैसा मूवमेंट बना रहा है? Clockwise. तो माइनस TAD cos 60 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कौन सा लोगे? बोलो 200. नहीं सर, नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, vertical वर्टिकल distance. बनाना पड़ेगा। That means I will draw this line. Correct? हाँ सर। अब ये 200 है, ये 30 है, तो अपोजिट मालूम है, मतलब क्या लगाओगे? sin थीटा. sin 30 is opposite. क्या हुआ? 200 sin 60 होगा, काय को sin 60 होगा? तो वो 30 वो 90 30 है ना बेटा, 30 है ना ये. अच्छा तू ये 60 ले रहा है. हाँ सर, हाँ हाँ ले ले बाबा, आंसर हो जाएगा. sin 30 is opposite लेट्स से मैं x लेता हूँ, x डिवाइडेड बाय hypotenuse is 200. So x कितना आ रहा है? x is equal to 200 sin 100. 100. So it will be multiplied by 100. Okay. Now this force TAD sin 60 कौन सा मूवमेंट बना रहा है? एंटी क्लॉक. एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise positive. प्लस TAD sin 60 डिस्टेंस क्या आएगा? बोलो 200. नहीं सर, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट अस से y, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का. सो अभी sin थीटा लगा दो, cos थीटा लगा दो. cos 30 is adjacent, that is y upon 200. So I will get y is equal to what? 173.20. 173.20. तो यहाँ पर आ जाएगा 173.20. ठीक है, चलो ये दोनों हो गया. अब ये भी बच गया बेचारा. ये कौन सा फोर्स बना रहा है? क्लॉकवाइज. तो माइनस 400 इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस विल बी वर्टिकल. तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री. ठीक है, तो अपोजिट टू 30 वाला चाहिए, तो sin थीटा लगा दो फिर से. ये हमको मालूम है 200 नहीं, ये कितना है? 150 है. 150 है सर. It will be 150 sin 30. 150 sin 30. This all should give you 0. So just one answer is unknown, that is TAD. So put सर your calculator. 75 आता है. इसका आंसर. अच्छा 150 sin 30 will be 75. 150 sin 30. Yes, yes. sin 30 हाफ होता है तो 75 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. So now the only unknown in this equation is TAD. बस shift solve वाला मेथड यूज करो और TAD का आंसर बता दो. सर ये -400 इनटू क्या लिखा आपने? 150 sin 30. उसका ये डिस्टेंस 400 का फोर्स है ना. फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल लगेगा, मतलब ये डिस्टेंस लगेगा ये वाला. हाँ तो ये वाला ट्रायंगल में लगाओ ना, sin 30 is opposite upon hypotenuse. हाँ सर सॉरी। sin 30 is opposite, let us say z है. z upon hypotenuse is 250, sorry 150. So z is equal to हाँ, 150 sin 30. हाँ सर समझा. सर TAD equals to 300.01 newtons. 300.01 मतलब 300 अप्रोक्सीमेट. Yes sir. चलो TAD मिल गया. पुट दिस वैल्यू ऑफ TAD को यहाँ जमा कर दो और यहाँ जमा कर दो. So you will get answers for you will get answer for HC and you will get answer for VC. HC is equal to 250. HC is equal to 250 Newton. VC VC तो काफी सिंपल है. -9.8. माइनस Yes. तो मेरे को ये नहीं समझा 400 वाला अभी भी नहीं समझा. क्या नहीं समझ? 400 फोर्स हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस कौन सा लोगे? वर्टिकल. वर्टिकल. तो मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए ना, सी जेड वाला. हाँ वो चाहिए वो तो ये ट्रायंगल में लगाओ ना, sin 30. sin 30 is opposite upon hypotenuse. सर 150 होना था. हाँ ये 150 दिया ना क्वेश्चन में, देखो इधर. हाँ हाँ सर वही कंफ्यूज है. VC का आंसर सर कितना आ रहा है? 259.81. माइनस Minus 250 पॉइंट. -259.81. ठीक है 259 253 थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो जा रहा है. आई थिंक नहीं 259 सर 259.3. हाँ 259.3. ओके 0.3 ठीक है. अच्छा अब मुझे बताओ VC मेरा आंसर नेगेटिव आया तो क्या चेंज कर दूं मैं डायग्राम में जाके? नो सर. मैंने बोला एक बार जो हमने बना लिया वो बना लिया. दिस माइनस इंडिकेट व्हाट? ये माइनस इंडिकेट क्या करता है कि जो तुम्हारा अज्यूम डायरेक्शन है वो रॉन्ग है. मतलब आपने जो नीचे अज्यूम किया था वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है. दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ माइनस साइन. बट उसको आप चेंज नहीं करना है. आपको खाली यहाँ क्या लिखना है? आफ्टर दिस माइनस यू विल राइट इज इक्वल टू 259.3 एंड यू विल टेल इट दैट इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. व्हाई अपवर्ड? बिकॉज मैंने लिया था नीचे, VC मैंने नीचे लिया था. आंसर नेगेटिव आया, वो इंडिकेट क्या करता है? वो ऊपर है. समझ में आ रहा है? यस सर. सर मेरा आंसर डायग्राम में पॉजिटिव आएगा. तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, तुमने ऑलरेडी ऊपर लिए थे तो तुम्हारा Yes, sir. पॉजिटिव आएगा. करेक्ट. बट इज द प्रॉब्लम कंप्लीट? नो सर. नो. नेगेटिव तो नीचे रहेगा सर. नहीं यहाँ पर नेगेटिव का मतलब वो नहीं है. यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम किया था वो गलत है. यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये होता है. टेंशन इन केबल एडी. तो टेंशन इन केबल एडी तो हमने निकाल लिया TAD. रिएक्शन एट सी. रिएक्शन एट सी मतलब HC और VC ने पूछा. रिएक्शन एट सी बोला, क्या नहीं समझा? सर वो डायरेक्शन जो BC का. देखो VC का माइनस डायरेक्शन नीचे है ना सर. नहीं माइनस का मतलब वो सब अपन देखते हैं रिजल्टेंट में. यहाँ पर ये हमने डायरेक्शन अज्यूम किया था. मैंने क्या अज्यूम किया कि HC यहाँ जा रहा है और VC यहाँ जा रहा है. ये मेरा अजम्पशन था. यस और नो? Yes sir. अगर मैं ऊपर लेता तो चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेफ्ट में भी बना सकता था हाँ. HC. हाँ सर. ये मैंने अज्यूम किया. तो इक्विलिब्रियम में माइनस क्या बोलता है कि जो तुमने अज्यूम किया वो डायरेक्शन गलत है. इक्विलिब्रियम में माइनस का मतलब ये होता है. ठीक है सर बट हमारे मार्क्स नहीं काउंट होंगे ना. अरे कैसे कटेंगे? तुम नीचे आंसर बता दिया ना फाइनल लिख के कि मेरा आंसर नेगेटिव आया, लेकिन एक्चुअली वो कहाँ है? ऊपर है. तुमने करेक्ट आंसर दे दिया ना उसको फाइनल में, तो कैसे मार्क्स कटेगा? ओके सर. हाँ तो HC VC मिल गया. वी नीड रिजल्टेंट रिएक्शन एट सी, दैट इज RC. तो रूट ऑफ HC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. तो RC कितना आएगा? 360.5. सर वहाँ से पॉजिटिव रहेगा तभी ऊपर रहेगा वो.
हाँ पॉजिटिव रहेगा मतलब तुमने ऑलरेडी ऊपर बताया तो आंसर ऊपर ही है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव तो नीचे है। नहीं ना बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो गलत है। इन इक्विलिब्रियम इन सपोर्ट रिएक्शन इफ यू से, क्योंकि वहां पर हमने अपनी मर्जी से रिएक्शन बना दिया, माइनस बताता है कि अजम्पशन गलत है, बस इतना ही। tan इनवर्स ऑफ fy by fx, so it will be 259.3 divided by 250, 46.1 दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखो डायग्राम कुछ खतरनाक था, मैंने कुछ नहीं किया, सेम लॉजिक है, कुछ नया करेगा अपने पूरे प्रॉब्लम में। वही इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, वही मूवमेंट किए, वही fx fy, मूवमेंट के लिए वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब कुछ तो सेम है, तो हर प्रॉब्लम में सिमिलर ही करना है, बट लोग पता नहीं क्यों देख के डर जाते हैं, आई डोंट नो। ओके, सो दिस फिगर आई विल स्किप नाउ। फोर्सेस इन स्पेस, ठीक है, चलो फोर्सेस इन स्पेस फटाफट पढ़ा देंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ए। बस करेंगे क्या आज के लिए?